Good afternoon, everyone. My name is Uday Raj Singh, and so let me introduce myself first. My name is Uday Raj Singh, and I teach mathematics at ADCI Pune. As you already know, there was a CDS paper, right, yesterday. So we are going to discuss math paper. So let us start. So that was question number 1. Yeah. So which is very easy. Question number 1. What is there in the question? If ABCD are the 4 numbers and their ratios are given. So A is to B is to C is to D, D is like root 4 is to root 3 is to root 2 is to root 1, right? Now we want the value of minus A square plus B square plus C square plus D square over A square minus B square plus C square minus D square. Very easy. So since ratio is, they are asking ratio, so we can directly substitute the value of A, B, C, right? So we don't have to worry about the exact value or the actual value of ABCD, right? We can directly use ratio. So question number 1. Yeah. So I can directly take A is equal to, or maybe A square is equal to 4 and B square would be 3 and C square would be 2, right? And D square should be 1. Now you can substitute the values, right? You can substitute the values of A square, B square, C square, and D square, right? Yeah. So what is the value? I mean, that we have to find, right? So see here, very easy. We have got A square minus A square plus B square plus C square plus D square divided by A square minus B square plus C square minus D square, isn't it? Now substitute the values, you'll get the answer, right? So what is A square? 4, so I'll get minus 4 and then plus 3 and then plus 2 and plus 1. Similarly over here, I need to write 4 minus 3 plus 2 minus 1, isn't it? Very easy. Okay. That is equal to, if you solve this, you'll get 5 plus 1, 6 minus 4, 2. And here, 4 plus 2, 6. And 6 minus 4 will give you 2 only. So answer is 1. A is the right answer. I hope it is clear. So question number 1, option A is the right answer. Okay. Next. Let us move to the next question. Question number 2. So what is there in the question? The speeds of 4 cars are, so let me write the speeds. 2u, these are the speeds. 2u, 3u, 4u, and xu. And the time taken by them to cover the same distance is, so these are the time, right? So I need to write xt here and 4t, then 3t and 4t. Where x, u, t are real numbers, then what is the value of x? So we need to find out the value of x. So I hope you understood the question. Very easy. Distances, distance is same, right? For every case. So if you read the question, it says the speeds of 4 cars, 2u, 3u, 4u, and xu, and the time taken by them to cover the same distance. So distance is same, right? So see here, distance, same distance.
Yes, same distance. I hope you can clearly see, right? Same distance. So since distances are same, it means ST should be same. So in the second case and third case, if you see ST is, distance is equal to speed into time, right? So that is 12 UT, right? 12 UT. So distance is 12 UT. Distance is 12 UT, right? Okay. So now we need to find out the value of X. So very easy. So 12 UT, in the first case, if you see, 12 UT is equal to 2U into XT. So U and T will get cancelled. So we are left with 2X is equal to 12. So X is equal to 6, right? So 6 is the right answer. So B. Option B is the right answer. I hope it is clear. Now let us move to the next question. Question number 3. Question number 3. What we have, M is to N is equal to 1 is to 2, right? And P is to Q is 3 is to 4. And we want the value of 2M plus 4P over N plus 3Q. This is what we want, right? What we can do, directly we can again substitute the values as they are asking the ratio. So directly you can substitute the value, right? So consider M is equal to 1 and N is equal to 2. Directly you'll get the answer. So 2M will give you 2 into 1 plus P will give you 4 into 3 divided by N will give you 2 plus 3 into Q, 3 into 4. So the final answer would be 12 plus 2, 14 divided by 12 plus 2, 14. Answer is 1. So answer should be 1 is to 1. It means A is the right answer. A is the right answer. Let us move to the next question. Okay. Question number 4. Question number 4. So what is there in the question? If the ratio of interest, or this is, see, if the rate of interest is 5%, then what would be the difference between compound interest and simple interest received on 10,000 each after 3 years from now? So see, rate of interest is 4%, right? We know the formula. And we need to find out the difference between, and time is 3 years. Time is 3 years. We need to find out the difference between CI and SI. Difference between CI and SI we want, right? So we can directly calculate SCI and SI, right? So see here. What is the formula for amount compounded annually? So the formula is P into 1 plus R by 100 to the power N, right? Now we already know, see, P is already given. What is P? I can write P is equal to 10,000. This is also given, right? So that is equal to 10,000 into 1 plus R is
4 by 100 raised to 3. So you will be getting 10,000 into 4 by 100 is 1 by 25, and this is 26 by 25 into 26 by 25 into 26. Now, if you simplify this, you will be getting, this is 100 into 100, right? So 25, this can be written as basically 25 into 4 into 25 into 4. So this 25 and this 25, 225 will be cancelled. So we are left with, and similarly 4 and 4 we have got. So 2 2s are 4, this is 13, and again 13, and this is nothing but 2. So this is also 30, right? So you can now simplify this, you'll get the answer. So from here you will be getting amount. Amount is equal to 13 into 13 into 13 divided by 25. Right? I hope it is clear. Right? So 2 2s are 4, you can simplify it, right? So 13 into 13 into 13 upon 25, right? That is the amount you can get, right? Let me simplify one more time, very easy. 25 into 4, 25 into 4, 225 will get cancelled, and we are left with 4 into 4, right? So here we have got 2, 2, 2, 13, 13, 8, and we will be getting one more 2 in the denominator. So that is how you will get amount, right? So similarly, suppose this is A1, and similarly, you can find out the amount A2, right? While using simple interest formula, right? So that will be equal to P plus P into R into T by 100. So the principal is 10,000 plus 10,000 into rate of interest is 5, time is 3, and divided by 100. So that is A2. So, and this is 100, sorry. So the 2 zeros will get cancelled. So we are left with, see, 10,000 plus 1,500. So A2 you will be getting, right? Now, if you find the difference, you will get the answer, right? So A2 will be 11,500. 11,500. So that is A2, and this is A1. Find the difference, you'll get the answer. Next, let us move to the next question. Question number 5. Question number 5. So what is there in the question? A person bought a book at 3/4 of its listed price and sold it at 50% more than its listed price. What is the percentage of gain in transaction? Right? Very easy. So we can consider the listed price 300. Right? Now, the CP would be, so this is listed price, LP, or maybe mark price, we can say, right? So this is 100. We have considered, right? Because we need to find out the percentage gain. So it really doesn't matter what we consider, right? So suppose 100 rupees, right? Okay. Now, 3/4 of it would be, I mean, that is CP, right? So CP would be 3/4 of 100, that is 75 rupees.
and 50% more, I mean SP is 50% more of listed price. So that would be 150. So very easy. As you can see here, SP is double of CP. SP is double of CP. So gain percentage would be 100. So option D is the right answer. Okay, next one. Number 6. If the difference between interior and exterior angles of a regular polygon is 144, and then what is the number of sides of a polygon? So very easy. What we can do, suppose let the interior angle be X and exterior angle be Y. So difference is given. So X minus Y is 144. So X plus Y, we already know sum of interior and exterior angle. Sum of interior and exterior angle is 360 degree, right? Now, since we want the number of sides, so what we can do, if you subtract equation 2 from 1, what you'll get? 2y. Or maybe you can, or minus 2y, right? And here you will be getting let me subtract 1 from 2. That will be better. So that is, sorry, x plus y is 180. My mistake. 180, right? So 2y will give you, tell me, 180 minus 44. 144, that is 36. So y is nothing but 18 degree, right? And y is nothing but exterior angle of a regular polygon, and which is equal to 360 by n. So I can just equate this 18 degree is equal to 360 by n. So from here, this is nothing but 20, right? So n is equal to 20. So number of sides would be 20, which is option D. Very easy. Let us move to question number 7. Question number 7. If the sum or and product of the roots of the quadratic equations, so we already know, how to find out the sum and product. The equation where sum and product are already given. So we need to find out the equation, right? So there can be infinitely many. Let us see the options. First option, it is absolutely wrong, right? Infinitely many quadratic equations are not possible. Only one quadratic equation is possible. And the quadratic equation would be x square minus sum of the roots plus product of the roots. Sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. Now, what is sum? X square minus sum is 2. So it will be minus 2x and product is minus 100. So answer would be, there is only one equation which is x square minus 2x minus 100 is equal to 0, which is option C. Very easy. Now, question number 8. Let us move to the next question. Very easy. What is that? If 2 is a zero of polynomial, then what is the sum of squares of other zeros of the polynomial? So question number 8. See, polynomial is given. P of x is equal to x cube plus 3x square minus 6x minus a. We can easily find out the value of a. How? Since x is equal to 2 should satisfy this one, right? P of 2 should be equal to 0. So P of 2 is equal to 0 because 2 is the root. So it should satisfy the equation P of x is equal to 0, right? Okay. Now just substitute the value of x is equal to 2 here. You will be getting 0 is equal to 8 plus 3 into 4, that is 12, minus 6 into 2, again 12, minus a. So from here, 12 minus 12 will get cancelled, right?
12 minus 12 will get cancelled. So A is equal to 8 we have got. A is equal to 8, right? So the equation would be, let me write the equation one more time. X cube plus 3x square minus 6x minus 8 is equal to 0. That is the equation. And the roots are 2 alpha and beta. They want alpha square. What are they asking? What is the sum of the squares of other zeros of the polynomial? It means they are asking alpha square plus beta square, right? So see, can I write alpha plus beta plus 2 is equal to minus b by a, which is minus 3, because sum of the roots is minus b by a. So from here, alpha plus beta, we have got minus 5. Now, similarly, what is alpha into beta into gamma, which is 2 here. So I can directly write 2. Alpha into beta into 2 is equal to minus d by a, which is 8. Now, alpha into beta, we have got 4. So this is the first equation and this is the second equation. And we already know alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. Now substitute the values, you'll get the answer. Alpha plus beta is minus 5, which is 25, is equal to alpha square plus beta square plus 2 into 4 is 8. So 25 minus 8 will give you 17. So answer is 17. So alpha square plus beta square is 17. B is the right answer. Okay, next, question number 9. Let us move to the next question. Very easy. Question number 9. What is there? T is cos 79 and we need to find out the value of cosec 79 into 1 minus cos 79. So see, how can I write cosec cosec 79 into 1 minus cos 79. So now see, I can write 1 minus cos 79 upon sin 79. And this is nothing but I can just see what I can do. We have to find out the value of this in terms of 1 plus t and 1 minus t. I mean, as you can see, I mean, in all the options. So I can just simplify this. This will be 2 cos square. Let us consider theta is equal to 79. Okay. So this is nothing but 1 minus cos 2 theta is 2 sine square theta, right? So I can write 2 sine square theta by 2. And here I can write sine 2 theta is 2 sine theta into cos theta. So that will be, I have used half angle formula. So this becomes 2 and 2 will get cancelled, sine and sine, 1 sine will get cancelled. So we are left with tan theta by 2. And we already know tan theta by 2 is equal to under root 1 minus cos theta over 1 plus cos theta, which is option D. So D is the right answer. Under root 1 minus t over 1 plus t. Okay. Let us move to the next question. Yeah. Question number 10. Question number 10. In question number 10, what we have got two polynomials, p of x and q of x. Zeros of the polynomial, here we have got 4 zeros and here also we have got 4 zeros, right?
So zeros of the polynomial p of x are alpha, beta, gamma, and we have got delta, I guess. Yes. And the other roots are, the roots of other polynomial are alpha, beta, gamma, and lambda. Yes. Yeah. Now what they are asking, what is the value of p of x minus q of x divided by x minus alpha, x minus beta into x minus, right? This is what we want. So what we can do, see, since the roots of the polynomial p of x is equal to 0 are alpha, beta, gamma, and delta. So what I can write, this can be written as x minus alpha into x minus beta and x minus gamma. This can be taken common, right? Because this is going to be there in both the polynomials, because alpha, beta, gamma are the roots of both the polynomials. So I can take common, and in bracket, I can write x minus delta here and minus x minus lambda here, right? And divided by x minus alpha, x minus beta into x minus gamma. Now what I can do, I can just cancel them out, right? So we will be left with this x and x will get cancelled. So we are left with lambda minus delta. Which one is the right answer? Lambda minus delta. So B is the right answer. B is the right answer. Now next. Question number 11. Question number 11. See, what is there? If the equation x cos theta is equal to x square plus p has a real solution for every theta belongs to 0 to pi by 4, then which one of the following is correct? Since we have got real roots, let me write the equation first. And theta lies from 0 to pi by 4. So let me write the equation first. So x square minus x cos alpha plus p is equal to 0. D should be equal to 0 because x is real. X is real, so D should be equal to nature of roots greater than or equal to. So from here, you will be getting b square minus 4ac, right? So cos square alpha minus 4p should be greater than or equal to 0. Since cos square alpha will be lying, okay, it was not alpha. Let me write, this is theta, right? This is theta. So cos square theta. So what I can do, 4p is less than or equal to cos square theta. And p should be less than or equal to 1. See, cos 0 is 1 and cos 45 is 1 by root 2. So if you square, you will get 1 by 2 to 1. So 1 by 2 to 1, right? So, and divided by 4, of course. So can I write p is less than or equal to 1 by 8? So which one? B is the right answer. Number 12. Number 12. What is the difference between greatest value and the least value of cos square theta plus 3 sin square theta plus 2? What is the minimum and maximum? So very easy. Whenever we get, or what we can do, see, although we have a shortcut for this, but what we can do, we can just write cos square theta
plus sine square theta plus 2 sine square theta, right? And this is nothing but 1. So this becomes 3 plus 2 sine square. Now we need to find out minimum and maximum value. We already know the minimum and maximum value of sine square theta, which is 0 and 1. So they want the difference between the greatest value and largest value. So the largest value would be, or the greatest value would be, see, when sine square is greatest, then the whole expression is greatest, right? So sine square, the greatest value of sine square is 1. So we have to take 1 here. So the greatest value would be 3 plus 2 into 1. That is 5. And the least value will be 3 plus 2 into 0. That is 3. So the difference G minus L, the difference would be 5 minus 3. That is 2. So C is the right answer. Let us move to the next question. See here. What is there in this question? Let me read it out. ABC is a right triangle. Right angled at B. AB, BC are given. Then what is the perimeter of the square inscribed in the triangle ABC with maximum area? So suppose this is the triangle ABC. Yeah. ABC. What is AB? AB is 6 centimeter and BC is 8. So now what we have to do, this would be automatically 10, right? So we need to inscribe a square inside this having maximum area. So suppose this is X and this is also X. This would be 8 minus X, right? And this would be 6 minus X. So suppose this point is, let us take D, E, and F. So this triangle, and this should be also X, right? So this triangle, which one? B, E, I mean E, E, F, and C, or you can say F, E, C should be similar to that of the triangle, I mean original triangle ABC, right? So we can use that proportionality concept, right? So it will be like 8 minus X. This is a right triangle, right? So what I'm saying, triangle ABC, triangle ABC is similar to triangle. E should be on the, I mean in the middle, and A is proportional to F. So F, E, C. So corresponding part should be proportional, right? Now, what we have to do, see, EC or BC, do we have BC? Yes. So BC over AB should be equal to, BC is corresponding to EC, right? And AB is corresponding to FE. And we already know. So from here you will get the value of X. And 4X would be the perimeter of the square. So from here, what is BC? BC is 8 by 8 minus X. What is AB? This is X. No. BC is basically 8. BC is 8. And AB is 6. And that is equal to, EC is 8 minus X and divided by
EF is x. If you simplify, so it becomes 8x is equal to 48 minus 6x. So that is 6x will go on the left, it becomes 14x, right? So 14x is equal to 48. So 2x would be equal to 48 by 7, right? What is the perimeter? 4x. That is equal to 96 by 7, which is B option. Very easy. Okay, next. Question number 14. Question number 14. What is the greatest value of k for which it has real roots? Very easy. Again, we have a quadratic equation 2x square minus 4x plus k is equal to 0. So since x is real, so what we can do? D should be greater than or equal to 0. So D should be greater than or equal to 0. So what is D? D means b square minus 4ac. So that is 16 minus 4 into 2 into k should be greater than or equal to 0. So from here, I can divide the whole equation, or I can write 8k is less than or equal to 16. So k should be less than or equal to 2. So the maximum value, the greatest value should be 2, which is B option. Next question. Question number 15. Question number 15. Consider the following data. So we have got data, right? Let us arrange them in ascending order, right? So the smallest one is 36, I guess, right? So let me write 36 first. And then we have got 41, then 43, 36, 41, 43. And then we have, I guess, 61, then 71, and 92 and 93. 92 and 93. And then we have 95 and 99. And then we have 110 and 127. 127. So let me count. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. One more number we have to write. So 110 is twice. So I have to write here 110 and 127. Yeah. So these are the 12 numbers, right? Okay. Now the first, I mean, what is there in the question? If 93 is replaced by 94. So see, if you see in the, I mean, in the following statements, we have got difference between median and old median, right? The difference between new mean and old mean, and difference between new mode. So we have to find out mean, median, and mode. So let me find mean, median, and mode. So very easy. So mean, old mean, right? So M old. Okay. So we have to find out old mean. Similarly, we have to find out old median, right? So a bit calculation is there. And similarly, we have to find old mode, right? And similarly, and what we have to do, we have to just replace by, I hope it is clear, right? Median is quite simple. We have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So for mean, what we have to do, summation xi over n, you can solve it, you will get it. Similarly, mode, median will be the middlemost value, right? So since we have got even number of terms, so what we can do, sixth term and seventh term, right? N by 2 and n by 2 plus 1th term. So sixth term and seventh term we have to find first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, these are the terms.
92 and 93. 92 and 93. So the median should be 92.5, right? And similarly, mode, only one data is getting repeated. So old mode should be 110, right? Yes or no? Now, then what we have to do? We have to replace 93 by 94. So the new data should be 36, 41. We have to replace 93 by 94. Remember, this should be replaced and the data should be 94 here. So you can clearly see median will be 93, which is 0.5 more than that of the old median. Yes or no? So 93 will be the new median. So let me check. The difference between new median and old median is 1. So first statement is wrong. Now, if you see the options, wherever, see, you don't need to solve this one completely. Always remember, I mean, we have to see the options first. So if you see first statement is correct, and you can clearly see all these options are having first statement other than B, right? So option would be B. We don't have to solve for mean and everything because it may be a little calculative. Now, let us move to the next one. Okay. The next one, 100th place of the number. Question number 16. We have to find out the 100th place of the number. Question number 16. Yeah. So what we have got, 225 raised to 100. Oh, no, it's 225 raised to 40, right? This is the number, and we have to find out 100th place. Okay. So we'll do it later, right? A bit lengthy, so it may take a lot of time. So we'll discuss it later. Now, number 17. Question number 70. See, what is there in the question? A, B, C, D are the natural numbers. Then how many possible remainders are there when 1 raised to A plus 2 raised to B plus 3 raised to C plus 4 raised to D? When it is divided by 10. So we have to divide it by 10. So what is the remainder? We have to find out. I mean, number of remainders. So very easy. See, this is 1. So doesn't matter what is there. I mean, A, B, C, D are natural numbers. A, B, C, D are natural. So what is the cyclicity of 2? 4. And similarly, cyclicity of 3 is also 4. And cyclicity of 1 is 1. I mean, this is going to be 1. And here, I can have 4 possibilities. If B is like 4k plus 1 of the form 4k plus 1, so it will give you 2 and then 4 and then 2 3 times. If you multiply, you'll get 8 and 6. Similarly, cyclicity of 3 is also 4, so it will give you 3 and 9, then 7, then 1, and here this will always give you 1. So yeah, and here you will get although cyclicity of 4 is 2, so I have to write 4 6 4 6, right? Yeah. So what we have to do, suppose we have got the number, see, all the numbers are different, right? All the numbers are different, so we have to take all the combination. See, whatever the unit place we are getting, that will be the remainder basically. So when you simplify this,
I mean, you need to consider each and every possibility, right? So we have to make pairs. Let me tell you, suppose I have fixed 1 here, this is fixed. So 1 plus 2 plus 3, that is 6, and 6 plus 4 is 10. So one remainder would be 0. Similarly, all other possibilities should be there. So how many possibilities are there? Let me tell you. Here 1, here 4, here 4, and here 2, right? So all these possibilities, and then we have to count the number of possible unit place that we are getting. If you solve it, you will get 6 number of possibilities. You'll get 8, I guess, 0, 2, 3, 6 you will be getting. So you have to make pairs. So you will get 6. So question number 17, option D is the right answer. Okay, next. You have to keep counting as the maximum number is 6. If you reach 6, that will be your final answer. Now, let us move to the next question. Question number 18. What we have? If n is a natural number, then what is the sum of all distinct remainders of 4 raised to n, 6 raised to n, plus 9 raised to n, plus 11 raised to n, when divided by 10 of various values of n, right? So again, n can be any number, right? Natural number. Yeah. So we have got 4 raised to n plus 6 raised to n plus 9 raised to n plus 11 raised to n, right? Now we need to divide it by 10. Divided by 10. And we need to find out the remainders, and then sum of the different remainders we need to find out. Yeah. So see, again, cyclicity of 6 is 1. Cyclicity of 11 is 1. So doesn't matter, I mean, what is n? It is going to be 6 and 1 only. So from here you will be getting 6 plus 1, 7. Yeah. Now here I can get, if n is an even number, I mean odd number, then you'll be getting 4, otherwise 6. Similarly, if n is an odd number, you will be getting 9, otherwise 1, right? Now this is 7, always. This is 7, because it really doesn't matter what is there in the power of 6 and 1. You will get the same unit place, right? So this is 7. Now odd and sure. So 7 plus 4 plus 9, if n is odd. The unit digit will give you, 7 plus 1, 11, 0, right? And 7 plus 6 plus 1. That will give you 6 plus 7, 13 plus 1, 14. So these are the remainders that we will be getting. Whatever the unit place that we are getting, that will be the remainder. Like 12 divided by 10, remainder is 2. 13 divided by 10, remainder is 3. So 0 and 4 will be the possible remainders. So the sum of the remainders would be 4. So 0 plus 4 is 4. So B is the right answer. Now, question number 19. So what is the divisibility test of 16, right? Question number 19. We have got some number and then dot dot so on, 99 and here 100. We need to divide this number by 16. I didn't write the numbers which are there in the beginning, because the divisibility rule of 16 says if a number, the last 4-digit number, and the number formed by last 4 digits from right, is divisible by 16, that the whole number will be divisible by 16. So it means we have to just divide 9100 by 16, last 4 digits. Whatever the remainder we get, that will be the final one. Very easy. So 9100 by 16. You need to just divide 16 5s are 80. Then we have got 11, 110. Then 16, 6 are 96, 16, yeah, 6 times. Then 96, 4, 14, 140, and 16, 8 are 128. So 12 will be the remainder. Yes.
So B is the right answer. Next question. Question number 20. Question number 20. ABCD can complete a piece of work in 3, 6, 9, and 12 hours respectively. Further, only one person can work at a time in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. It is not necessary to engage all. What is the minimum number of hours that they will take to finish the work? So let me draw the tree diagram for this. This is the question of time and work, right? So this is A, B, C, D. And we have got the number of days that they take to finish a piece of work. That are 3, 6, 9, and 12, right? So let us consider a work. We have to find the LCM of all these numbers. So it will be 36, I guess. Now let me write the efficiency as well for A, B, C, D, all of them. So it will be 12, then 6, then 4, and then 3, right? Yeah. Now, if you want to finish the work as early as possible, then what we can do? I mean, we have to take A for sure, right? So the day 1, A has to work. And day 3 also A has to work. And then the efficiency of B is greater than the C and D. So we have to use B here. That is the possibility. A, B, and A. Because 2 people cannot work simultaneously, they have to work one by one, right? So see, A will do 12 amount of work, 12 units of work, and then 6, and then 12. So here, 12 and 12, 24 plus 6, 30. And then one more B should be there, right? So it will be again 6. So 12 plus 6, 18, 18 plus 18, 36. So how many days? How many days? 4 days will be needed. So C is the right answer. Yes or no? Very easy. So 4 is the right answer. Let us move to the next question. This is a very good question. Question number 21. What is there? P is cube root of something plus cube root of another unit is there. And then we need to find out P cube plus 3BP. That is what we need to find, right? So I can directly apply A cube plus B cube, right? I mean, P cube would be, let us consider P is equal to A plus B, right? Where A is cube root of A plus under root of A square plus B cube, and B is a cube root of A minus under root of A square plus B cube, right? So P cube will give you, I mean, A plus B ka whole cube, right? That is equal to A cube plus B cube plus 3AB into A plus B, right? So if you see A cube plus B cube, cube root will be eliminated, right? So we will be getting A plus under root A square plus B cube plus A minus under root A square. So we will be getting 2A basic. Very easy. I'm writing it directly. And then if you multiply, you will be getting 3 times A into B. If you multiply, so this is cube root of 3 into cube root of, if you multiply, it will be A square minus B square, which is A square minus A square minus B cube, because square root will be eliminated. And A plus B can be written as P, because A plus B is P, right? Yeah. So that is equal to 2A. This A square and this minus A square will get cancelled. Minus B cube.
and cube root will get cancelled, but negative sign will be there. So it will be minus 3 BP. Now P cube plus 3 BP will give you 2A. So answer is 2A, which is C option. Question number 22. Question number 22. Question number 22. A plank of wood 4.25 meter and 3.5 meter. So what we have to do? We can write it as 420. I mean, this is the length 425 by 100, and breadth would be 340 by 100 centimeter. And we have to find out the total number of squares. It has to be cut into square pieces of equal size. And then how many square pieces of largest side can be cut from the plank if no wastage is allowed? So we have to find out the HCF of both of them. Suppose we have got H into A, right? The HCF of L. I mean, L can be written as H into A, and similarly, B is equal to H into B. So the final answer would be A plus B. You can solve it, you will get the answer. Whatever A plus B, whatever the value of A plus B, that will be your answer. So we need to just find out the HCF of both of them. Then A plus B will be your right answer. Now, next one. Number 23. So HCF of x raised to 4 minus 13. I mean, there are three terms. And we need to find out the HCF. Since we have got the options, right? And none of these is not there. So what we can do, we can directly substitute the values of x and y. So let us consider x and y is equal to 1. So the first number would be 1 minus 13 minus 300, which is minus 288. And the next number would be 1 minus 4 minus 4 minus 5, which will give you minus 3, minus 4, minus 7, and minus 5, minus 12. And the next number will give you 1 minus 125. That will give you minus 125. If you see, the HCF cannot be greater than minus 12. I mean, in magnitude, right? So now we have to see whether this number is divisible by 3 or not. So 8 plus 8, 16 plus 2, 18, 4 plus 2, 7. I mean, 4 plus 2, 6 plus 1, 7. So this is not multiple of 3. But you can clearly see every number is multiple of 4. Every number is multiple of 4. So it means the HCF should be minus 4, right? Now, we have to put the values of x and y in the options as well. So the first option will give you 1 minus 5, that is minus 4. And rest of the options are wrong because we are not getting minus 4 in any other option. So A is the right answer. Let us move to the next question. 24. HCF of 768 and 768 and x raised to 6y square and 32xy. I mean, this is the HCF basically, right? HCF of these numbers is 32xy. This can be written as 32 into 24. And here, this can be written as xy into x raised to 5 into y, right?
Now you can clearly see the common part is 32 here, and here common part is xy. Both are common. So it means 24, and we need to find out x plus y. So we need to factorize basically 24. Xy should be equal to 24, right? So, and x and y both should be greater than or equal to 2. So 24 can be factorized into 3 and 8. So either x is 3 or, and y is 8, or vice versa. So x plus y will give you 11, which is D option. Next one. Question number 25. What is the smallest number n such that n plus 1 into n minus 1 up to is divisible by 910? So we have got the numbers n plus 1, 25, n plus 1 into n minus 1 till 1, 3, 2, 1 is divisible by, we have to find out the value of n, for which, I mean the smallest natural number n, such that it is divisible by 910. 910 can be written as 13 into 7 into 10. 13 into 7 into 10. So the maximum factor, since you can clearly see all the factors are consecutive, right? So if we get 13, then we will get the answer, right? Because see, if 13 is there, then all other values will be there. 7 will be automatically there, right? So n plus 1 should be 13, basically. The largest factor, 13. So n should be equal to 12. So D is the right answer. 26. This is a very good question. Question number 26. What is there? The expression 555 raised to 777 plus 777 raised to 555. So as you can see, I mean, we have to find out which are the numbers by which, I mean, all the, I mean, this expression is completely divisible. So what we can do, and we have options 2, 3, 37. So first statement is 2, and then this is 3, the second and third. This is 2, this is 3, and 37. So see, first statement is correct. Why first statement is correct? Because this is an odd number, this is also an odd number. So 2 will be there. I mean, C option can be eliminated easily. Now, this is multiple of 111, and this is also multiple of 111. So 111 can be written as 3 into 37. So it means both the numbers are multiple of 3 and 37. So it means the whole number will be divisible by 2, 3, and 37, which is D option, 1, 2, 3. Question number 27. Consider the following statements. 3m square plus 2m square plus 5m plus n upon m is not an integer. Where m and n are integers, then n is not divisible by m. Okay. So it means it is a fraction, right? Statement number 1. Question number 27. So in statement number 1, 3m cube plus 2m square plus 5m plus n over 5. I mean over m. Where m is an integer. M and n both are integers, right? So very easy. It will be equal to, I mean, this term is divisible by m. This is also divisible by m. This is also divisible by m. So if n is
not multiple of m, it means it cannot divide. So the first statement should be correct. If it is not an integer, it means n is not divisible by m. So absolutely correct. So first statement is correct. Now the second statement. 5 into 8 raised to m plus 2 raised to 3m is divisible by 48. If you divide it by 48, remainder should be 0. Remainder should be 0. And m belongs to whole number. And whole number starts from 0. If you put 0 here, so you'll be getting 5 into 8 raised to 0, that is 1. So 5 into 1, 5. 5 plus, again 2 raised to 0 will give you 1. So 5 plus 1 is 6. And 6 is not divisible by 48. So the second statement is correct. So answer would be only first statement is correct. So answer would be A. A is the right answer. Let us move to the next question, number 28. Question number 28. The sum of two positive numbers is 40 and GM of these numbers is lower than their AM by 20%, then what is the difference between the two numbers? Very easy. Let us consider the numbers x plus y, x and y. So x plus y is 40. So AM, which is x plus y by 2, that is equal to 20. Now, GM, whose G, which is under root xy, is equal to 20% less than that of AM. The GM of these two numbers is lower than their AM by, it means 80% of AM. So 80% of 20. So 80% of 20 is 16. So G is equal to 16. So A is x plus y is 40. So x into y will give you 16 square, that is 256, right? So we have got sum and product. Now they want the difference between the numbers. And we already know x minus y whole square is equal to x plus y whole square minus 4xy minus 4xy. So we can use this formula, you'll get the answer. Now what is 40 square? That is 1600 minus 4 into 256 is 1024, which will give you 576. Now x minus y whole square. Taking square root on both sides, you'll get x minus y on is equal to 24. So the difference between the numbers would be 24, which is C option. 29. 29. 50 men complete a piece of work in 40 days. They begin the work together, but the batch of 5 men left after each period of 10 days. And what is the time to complete the work? So see, the total work, let us consider the total work is 50 into 40. 50 into 40 units, right? Now, 50 into 40 must be equal to, so 50 men have started working together. Then after 10 days, what they have done, I mean, see, batch of 5 left. So the remaining will be 45 and then 40 likewise after 10 days, right? So you need to find out the value of n, number of 5 days. So n will be equal to, or n dash would be equal to n into 10, because n is equal to, n will be the number of days, right? And they are leaving after 10 days, right? So for each term, 10 days are there. So if n is suppose 2, so number of days should be
20. So if you solve this, you'll get n is equal to 5, and the final answer would be 50 days, right? So B is the right answer. You can solve it. This is very easy. Okay. Next. Okay. Next. This can be written as like here also we have to write one more 10. So this 10 will get cancelled because see 50 into 10 first 10 days, the next 10 days 45 into 10. So if you solve this, you'll get the value of n directly. Value of n directly, and then we need to find it by, we need to multiply by 10. We'll get the answer. Answer is 50. Okay. Let us move to the next question. This is very easy. What we can do, question number 30. What is there? X is equal to some 1 plus 2 plus something is given, right? Let me consider this as capital X. So 1 upon 2 plus X. So it is very easy. As you can see, all the numbers are positive, right? So it cannot be negative and it cannot be 0 as well, right? And it will be, of course, less than 3. 1 by 2 is 0.5. Since denominator is greater than 2, if you increase the denominator, the value of the number will decrease, right? So it should be less than 0.5. So X will be lying between 0 and 0.5, which is A option. Very easy. Question number 31. We can use options here. Question number 31. There is a bottle. A bottle contains spirit and water in the ratio 1:4, and another identical bottle contains spirit and water in the ratio 4:1. In what ratio should the mixture in the two bottles be mixed to get the new mixture in which the ratio of the spirit to the water is 1:3? So see, let me draw the diagram first. Suppose this is bottle 1 and this is bottle 2. In bottle 1, the ratio is 1:4, and here 4:1. In which ratio we need to make so that the ratio becomes 1:3? So we can directly use options. So we can go by option in this question. Let us consider 5:1. Okay. So 5 times B1 and 1 time B2. So you'll be getting, we need to add spirit and water together. So for a spirit part, we will be getting 5 into 1, that is 5, plus 5 into 1 plus here 1 time 4, 9. And here 5 into 4, 20. And here 1 plus 1 into 1. So that is 9 by 21. Right? So it is not correct. Similarly, B option, you need to check for 6:1, C option 10:1, and D option. If you check for D option, you'll get the answer. See, 11 into 1 is 11. And here you will get 4. And then, although we have traditional method for this, but you can use options here. Now, 11 into 4 is 44 plus 1 into 1 will give you 1. So this is 15 by 45, which is 1:3, which is 1:3. So option D is the right answer. Option D is the right answer. We can use options here. Now, number 32.
This is very easy. This is a shortcut. 3 sine theta plus 5 cos theta is equal to 5, and then we have to find out the value of 3 sine theta minus, 5 sine theta minus 3 cos theta. So we have got 3 sine theta plus 5 cos theta is equal to 5, and here we want 5 sine theta minus 3 cos theta. Let us consider as D. So there is a shortcut. If we have A cos theta plus B sine theta is equal to C, and B cos theta minus A sine theta is equal to D, right? It means you need to just interchange the coefficients of sine theta and cos theta, and we need to change the sign in between, right? So we have directly result A square plus B square is equal to C square plus D square. If you don't remember it, you have to just square and add both the equations, you'll get it. So we have got A 3 and B 5. So 3 square plus 5 square is equal to C is also 5, and we want D. So 5 square and 5 square will get cancelled. Taking square root on both sides, you'll get plus minus 3. Since plus 3 is not there, but minus 3 is there, we can directly mark the option A. A is the right answer. Okay. Next question. Question number 33. See, very easy. This is x raised to 4k. X raised to 4k. We need to find out the factors in both the statement. The remainder is 0 when it means it is divisible by x raised to, x square plus 1 and x raised to 4 plus 1 or not. So x raised to 4k plus x raised to 4k plus 2 plus x raised to 4k plus 4 and plus x raised to 4k plus 6. Now I can take x raised to 4k common. So 1 plus x square plus x raised to 4 plus x raised to 6. Now what I can do, x raised to 4k common, here 1 plus x square, and then I can take x square common, x raised to 4 common, and here we will be getting 1 plus x square. So if you simplify this, you will be getting 1 plus x square into 1 plus x raised to 4. Since this expression is multiple of 1 plus x square and 1 plus x raised to 4 both, that means if you divide this whole expression by x square plus 1 or x raised to 4 plus 1, you'll be getting remainder 0. So both the statements are correct. So C is the right answer. C is the right answer. Now, 34. Question number 34. So, question number 34. What is the minimum value of sine square A plus 5 sine A plus 1 upon sine A, where A is there from 0 to pi by 2. Pi by 2 inclusive and 0 exclusive. Yes? Yeah. We have to find out the minimum value. So let us divide this. You will get sine square upon sine A, which is sine A, plus 5 plus 1 by sine. And you already know sine A will be there from 0 to 1 in the first quadrant. 0 exclusive and 1 inclusive because 0 is not there. So the minimum value of x plus 1 by x will be 2 at pi by 2, right? So it will be minimum value will be 2 plus 5, that is 7. Option C is the right answer. Let us move to the next question. Question number 35. This is based on sum of difference, right? So I can write 3 by, this is the question, 3 by 1 square into 2 square plus 5 by 2 square into 3 square plus 7 by 3 square
3 square into 4 square, and likewise, right? So since number of terms are not given, so we can take till infinity, right? So if you see, I can write here 1 minus 1 by 2 square, this one, because the difference of both the numbers or both the parts in the denominator is there in the numerator. So I can write here 1 by 2 square minus 1 by 3 square. And similarly, 1 by 3 square minus 1 by 4 square, and dot dot so on till infinity, right? Now everything will be cancelled. See, this, everything will be cancelled. And the last term, of course, it will be 0 because it is still infinity. So we are left with only 1. So answer would be 1. A is the right answer. Let us move to the next question. This is very easy. We have to write the number in the form of this, right? 36. What is there in the question? So I have to write the number which is there on the right hand side in terms of, or in the way the number is written on the left, right? So this will be 421 divided by 972. So this can be written as, first of all, I have to write, see, this is equal to 1 by A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 by D plus 1 by E. So in this form we have to write. So first of all, I can write this one as 1 upon 972. I mean 1 upon 421, when 972 by 421. Now I have to write this one as 1 by, if you divide it, you will be getting 421 into 2 will be 842, right? So this will be like 2 plus 842. If you subtract 9 into 972 minus 842, that will be 130, I guess, divided by 420. Again, we have to write 1 upon 2 plus again 1 upon 420, 1 upon 130. Likewise, we have to solve. It will give you 3, right? So 1 plus 2 upon, 1 upon 2 plus 1 upon 3, likewise. So you will be getting the value of A, B, C, D, E. A, you will get 2, here you will get 3, and then likewise till 6. A is 1, A is 2, 3, 4, 5, and 6. If you multiply, you will get the answer. So all are the values of A, B, C, D, E. If you multiply, you'll get the answer. Now, 37. Question number 37. A cube whose edge is 14 centimeter long. So how many faces are there? How many faces are there? There will be 6 faces, right? So a cube whose edge is 14 centimeter long has on each of its face a circle of 7 centimeter radius, painted yellow. What is the total area unpainted? So basically, the total area would be 6 times the length of edge is 14. So this will be 14 square minus the area of circle, right? So that is 22 by 7. Radius would be, of course, this is the circle I need to draw, right? So the radius would be 7. That will be your final answer. So this is 7, 7. So you will be getting like 196. 196 minus 154. If you solve this, you'll get 252. So C is the right answer. Now, 38. From a circular metal plate, what is there in the question? From a circular metal plate, the radius is 7 centimeter, and the thickness is 0.16. 0.16. 0.16 into 7 centimeter. 7 into 7 will be 14. 14 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 into 7 will be
mm, right? And a sector is cut off containing an angle 150. The remaining piece is molded into the spherical bead of radius r. Then what is the value of r? So what we can do, this is a circular metal plate whose radius is, whose thickness is 0.16 mm. So what we have to do, we have to find out the remaining area, right? This is suppose 150, here this is 150. So this will be cut, this will be cut, this part, right? So the remaining part, we have to find out the volume of remaining part, right? This one. And we have to equate it with the volume of the spherical ball. So what we can do, the remaining angle is nothing but 210. So 210, we have to find out the area of sector 210 upon 360 into pi r square. Pi r is basically 7. And into that breadth, area into height, that is volume. So that will be 16 upon 1000 I have to write, because I need to write in centimeter, right? Okay. So that will be equal to 4 by 3 pi r square, r cube. If you simplify this, you'll get the value of r. Pi and pi will get cancelled. You need to just simplify, you'll get the answer. Okay. Let us move to the next question. Question number 39. The chord AB of a circle with center O is 2 root 3 times height of the minor segment. If P is the area of sector OAB and Q is the area of minor segment of the circle, then we need to find out the approximate value of P by Q. So this is a circle. So it is a bit, again, calculative one. So we can solve it later. Let us move to the next question. Question number 40. What is there? What is the area of region between two concentric circles if the length of the chord of the outer circle touching the inner circle at the particular point of its circumference is 14 centimeters? So we have got two concentric circles, right? And the chord of the larger circle touches the inner circle, and which is 14 centimeters. And we need to find out the area of region between the concentric circle, this area. So as you can clearly see, we are unable to, this is, we cannot determine the area as data is insufficient. So D is the right answer for this. Question number 41. So see, what is there in question number 41? In a right triangle, there is a right triangle of lengths are given. This is, I guess, 25. This is A, B, and C. AB is 15 centimeter and BC is 20 centimeter, right? Now, BP is perpendicular to AC. BP is perpendicular to AC. So you need to draw one more perpendicular from B to AC, which is P. Now, what we have to do, what is the difference of the area of triangle PAB and this area of this and this we have to find out. So since we already know BP square is equal to AP into PC. This is what we know, right? Now, what is the area? Area is nothing but half into base into height, right? So what I can do, I have to write, see, this is multiple of 3 and 5. These are multiple of, this is multiple of 3. This is multiple of 4. So this has to be multiple of 3 and 4. So let us consider this as 3 and 4. 3 into 4, 12. 3 into 4, 12. So if this is 3 into 4, this is 3 into 5. It means this should be 3 into 3.
This is 5 into 4. This is 3 into 4, and this is 4 into 4. And here you'll be getting 3 into 3, 3 into 3, 3 into 4, and 3 into, this is 3 into 5. So now see, 3 into 3 and 4 into 4, 16 plus 9, 25 by using substitution. And 12 square is 144. And 9 into, again, 16, this is also 144. So this condition satisfies. Now we need to find out the area of PAB and PBC. So that will be half into base into height. So the area number 1 will be half into base is 9, height will be 12, that is 54. And area number 2, that is half into 16 into 12, that is 6, that is 96. And 96 minus 54 will give you 42. So A2 minus A1 is nothing but 42 square centimeters. So which is B option? Very easy. 42. Question number 42. So let the positive numbers A1, A2, A3 and GM is GM of A1, A2, A3 up to AN is P, right? So this P is GM of A1, A2, A3 up to AN. And Q is the GM of AN plus 1 up till AN plus 2 up to A3N. We need to find out the GM of all 3N numbers. So what we can do, G is equal to, we have to multiply all of them, right? So that is A1 into A2 up to AN. Similarly, into AN plus 1 into AN plus 2 up till AN, I mean A3N. And whole power, and that is basically GQ, right? This is GQ. Yes, yeah. So GQ will be equal to, what is A1 into A2 up to AN? That is P cube, I mean P raised to N. And here, this should be G raised to 3N, right? Yeah. So here, and similarly, what is the product of AN plus 1 till A3N? That will be Q raised to 2N, because there are 2N terms, right? Yeah. So if you multiply, you'll get Q raised to 2N. Now G will be equal to, I mean G cube P into Q square, right? Now G will be equal to P raised to 1 by 3 into Q raised to 2 by 3. This is Q square. This is Q square. So 2 by 3. So this is the final answer, D option. D would be the right answer. Okay, next. 43. The cost price of Y article, CP of, question number 43, CP of Y article is equal to selling of Z article. So CP into Y is equal to SP into Z. And we already know Y is to Z, 5 is to 4. So in place of Y, I can write directly 5. In place of Z, I can write 4, right? So CP or SP over CP, SP over CP will give you 5 by 4, which means 25% profit. So B is the right answer. B will be the right answer. B option. 44. What we have? Sum of money invested. Question number 44. A sum of money invested in simple interest triples itself in 8 years. It means 200% is equivalent to 8 years, right? It means in 1 year, how much percentage? 200 by 8, right? Now, in 1 year, it will be
200 by 8%, right? Now what we have to do? N times it will be in 20 years. So in 20 years, we have to multiply it by 200 by 8 into 200 by 8 into 20, right? So it will be like 4 2s are 4 5s are, and this is 100. So that will be equal to, in 20 years, that will be equal to 500%, right? Now, in 20 years, 500% increase. So answer will be 6 times. So B is the right answer for this. Now, 45. We can use options in this question, right? Since X men in X plus 1 days, they work the same amount of work. They do the same amount of work as X plus 1 men do in X minus 2 days. So it means we can just multiply N1 D1 is equal to N2 D2, right? So X into X plus 1 is equal to X plus 5 into X minus 2. You need to just solve this quadratic equation, you'll get the value of X. Or you can go with the options as well. If you take A option, AX is equal to 5, it is satisfying, right? So answer is A. 5 into 6, 30. 5 plus 5, 10 minus, 10 into 3 will be 30. So A is the right answer. 46. What is there in question number 46? What we can do, we have got the ratio of A plus B is to B plus C is to C plus A is equal to 5 is to 7 is to 6, right? Now we want the value of A minus B plus C is to A plus B minus C, right? So what I can do, if you add all of them, you'll be getting A plus B plus C 2 times. That is equal to 5 plus 7, 12, 12 plus 6, 18. So A plus B plus C is 9 basically. Now, if I want A, so B plus C is corresponding to, the number 7. So B plus C is 7, so A should be 2. C plus A is 6, so B should be 3. And similarly, A plus B is 5, so A should be 4. Now substitute the values of A and B and C here, you'll get the answer. Now 47. What we have? X be the compound interest at the end of 3 years. Principal is 1000 and time is 3 years. X is CI and I guess Y is SI. But for SI, principal is same, I guess, 1000. But rate of interest, time is also 3 years. But rate of interest is different. So here R is equal to 10% and here R is equal to 11%. So we need to find out CI and SI separately, and then we need to find out the difference. That is easy. You can solve it. You can use the formula. Right now, question number 48. Question number 48. See, suppose this is a parallelogram. Any quadrilateral you can have. And we have got the values of AB. AB is, this is A, this is B. AB is 6, BC is 18, and CD is 6 again, and DA is 10. And we have got BD. Okay, this is BD. This is BD, right? Now BD is, suppose X. Now we have to use triangular law, right? Which says sum of any two sides must be
I mean law of triangle, A plus B must be greater than C, right? So X should be lying between 12 and 16. If you solve this, and I mean 10 plus 6 is 16, right? And 12 plus 6 is 18. So it should be lying between 12 and 16. So option should be B. Okay, next. Question number 49. Again, let me draw the diagram only. See, suppose this is a circle. Right? First quadrant. In first quadrant, you need to draw another circle. Radius of this circle is small r, and radius of this one is capital R. You need to find out, use the geometry, and you need to find out the ratio of R and R. Last question, question number 50. What we have? We have AB is equal to BC and DC is CD is equal to, consecutive sides are equal. So we can consider it as rhombus because nothing is given. And you already know in rhombus, consecutive sides are equal. So AB is equal to BC and CD is equal to DA. Okay. Now AB is, okay, they are given the length of diagonal. So this is AC and this is BD. And we already know diagonals are perpendicular to each other in rhombus. So AC is 6. So it should be 3 and 3. And this should be 6 and 6. Now what we want? What is the area of quadrilateral? So that is half into D1 into D2. Half into D1 into D2. That is the area. That will be equal to half into, and D1 is basically 6 and this is 12. 2 3s are, so answer should be 36 square units. 36 square centimeters. So C is the right answer. So that is the right answer. From question number 51 to 100, Aman sir will continue. Thank you. ओके हेलो एवरीवन। तो अभी हम 51 से 100 सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। लोगों के क्वेश्चंस है। ओके सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है इन दिस क्वेश्चंस। तो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए इफ tan अल्फा इज टू cot बीटा होंगे ना, ये कब पॉसिबल होंगे? जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी 90 डिग्री, मस्ट बी 90 डिग्री। तो इन दिस क्वेश्चंस अल्फा इज 3a एंड बीटा इज a minus 22 degree equals to 90. So 4a equals to 90 plus 22 degree. So 4a is equals to 112 degree. Okay. So a का वैल्यू आप निकाल सकते हो। a equals to 112 by 4 which is 28 degree. So 51 के ऑप्शन C करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p प्लस q। तो राइट साइड का रिजल्ट क्या है? सेकेंड टेन में है, तो हम लेफ्ट साइड के रिजल्ट को भी सेको टेन में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसे कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे सेक और tan में। तो सेक और tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करने वाला हूँ, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस tan थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 आ जाएगा, एंड 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा आ जाएगा, देन tan थीटा प्लस 1 प्लस नॉट लास्ट साइन माइनस है यहाँ पे, -1 माइनस ऑफ सेकेंड थीटा। से रीअरेंज करते हैं थोड़ा हम इस क्वेश्चंस को, एक्सप्रेशंस को। tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस भी यूज कर सकते थे, रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते थे थीटा का और दो इक्वेशंस निकाल के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे। मैं यहाँ पे 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, देन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, और फिर मैं tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आएगा, सेकंड प्लेस पे माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा बचेगा कॉमन लेने के बाद, और सिमिलर टर्म्स आपके नीचे डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा। कॉफिशेंट क्या है दोनों का, 1 एंड 1, हमें कॉफिशेंट का सम ही तो पूछा गया था, तो पी भी 1 आ गया, क्यू भी 1 आ गया। सो पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो 52 के ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द 52। ओके, नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, 53 नंबर क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चंस, angle of elevation of top of the tower from the 2 point A and B, distance x and x plus 5 from the base of the tower, and height is 6 centimeter given है, and same straight line and is it are complementary। complementary means एक थीटा है तो दूसरा 90 minus थीटा होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट मार्क करते हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियस है कि x प्लस 5 हायर होगा, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस अगर आपका x है, दिस इज पॉइंट A, तो पॉइंट बी का डिस्टेंस फुट से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ये x है। तो नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इस फुट को मार्क करता हूँ एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस विल बी द x प्लस 5। हाइट गिवन है 6 मीटर, हाइट इज 6 मीटर। इफ आई कंसिडर दिस वन इज थीटा, तो कम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप किसी को भी पिक कर सकते हो। सो इसको मैं पी ले लेता हूँ। तो देयर आर टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स पी, इन ट्रायंगल पी ए ओ, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करता हूँ तो विच इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 6 पाई x आ जाएगा। एंड सेकंड ट्रायंगल्स में यूज करता हूँ इन ट्रायंगल पी बी ओ, अगेन tan 90 माइनस थीटा, जो एंगल्स मेंशन है, तो ये आपका आ जाएगा 6 पाई x प्लस 5। ओके, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है 6x प्लस 5, एंड कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय tan थीटा इज टू 6x प्लस 5, एंड tan थीटा का वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय 6 हो जाएगा इज टू 6x प्लस 5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर्स आएंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 9 इक्वल टू 0, एंड लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो x कितने डिस्टेंस पे होंगे, सो पॉइंट ए है ग्राउंड पे, वो आपके 4 मीटर अवे होंगे। सो 53 के ऑप्शंस एक करेक्ट होंगे, 53 के ऑप्शंस एक करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ, ओके। सो इन दिस क्वेश्चंस हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ साइन एंगल साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज 3√3/2 है। तो मेंशन करना है कि ट्रायंगल्स क्या इक्विलेटरल है, क्या हो सकता है, कैन बी इक्विलेटरल पूछा गया, देन द ट्रायंगल कैन बी इक्विलेटरल, यस मे भी हो सकता है ना, श्योर तो पूछा नहीं, हो सकता है मीन्स अगर आप 60 60 60 लेते हो, साइन 60 इज √3/2, सारे एंगल्स इक्विलेटरल है, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सारे एंगल्स को अगर आप 60 पिक करते हो तो साइन 60 √3/2
साइन बी भी 60 हो जाएगा, वो भी √3/2 तो आपके एंगल्स क्या आ जाएंगे, साइन बी साइन सी सारे के सारे वैल्यू सेम आएंगे, और ये आके जाएंगे √3/2 के इक्वल, और इनके सम करेंगे तो 3√3/2 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। सिमिलरली अगर सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कॉस पे, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी भी इक्वल आएंगे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। और ये सारे का सारे वैल्यू कितने आएंगे, 1/2, और इनका सम भी आपका 3/2 आएगा। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो 54 के ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ट्रेन के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है कि टू ट्रेन ए एंड बी लीव्स दिल्ली फॉर हैदराबाद at 7 a.m. and 7:50 a.m. So time difference कितने हैं, 50 मिनट के टाइम डिफरेंस है on the same day, and travel 80 किलोमीटर पर आवर and 100 किलोमीटर पर आवर respectively. After how many kilometers from the Delhi will the two trains be together? ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिसका स्पीड लेसर लाइक 80 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 50 मिनट्स ट्रेवल करने के बाद सेकेंड ट्रेन स्टार्ट हुआ है, मतलब इस तरह से है ना। टू ट्रेन ए एंड बी, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी की बात कर रहा हूँ। ट्रेन ए लीव कर रहा है स्टेशन को 7 AM को, एंड ट्रेन बी लीव कर रहा है स्टेशन को 7:50 को, ठीक है, सेम डे। एंड स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ फर्स्ट ट्रेन का 80 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलो ट्रेन ए का डिस्टेंस आप निकालो कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 50 मिनट में, क्योंकि वो 50 मिनट ट्रेवल करने के बाद ट्रेन बी स्टार्ट हुआ है ना। तो अगर मैं ट्रेन ए का डिस्टेंस निकालने की ट्राई करता हूँ, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इज टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम हमें 50 मिनट लग रहा है, तो मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो डिवाइड बाय 60। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 के टेबल में आता है तो 340। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज 200/3 किलोमीटर, 200/3 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि ये आपका डिस्टेंस हो गया 200, और बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो आप, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो कितना है, 100 माइनस 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम निकालने का ट्राई करते हैं। तो टाइम इज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए कितना है, 200/3 डिवाइड बाय 20 करेंगे, ये निकल के कितना आ जाएगा, 10/3, 10/3, 10/3 आपके निकल के आ जाएंगे, 10/3 आवर। अभी मुझे क्या निकालना है कि कितने किलोमीटर के बाद, आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द दिल्ली विल द टू ट्रेन बी टुगेदर। तो जो अप्रोच कर रहा है, सेकंड ट्रेन अप्रोच कर रहा है फर्स्ट ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसने इतना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वही आपका मीटिंग पॉइंट होगा। तो जो 100 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस जो मीट किया होगा, मीटिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो जो आपने टाइम निकाले हो, डिस्टेंस इसका टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1000/3 किलोमीटर। इतने किलोमीटर के बाद सेकेंड ट्रेन जो बी है 50 मिनट लेट से खुला था, वो फर्स्ट ट्रेन को मीट करेगा। सो ऑप्शंस डी, 55 के ऑप्शंस डी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे शेफी क्वेश्चन में आप एजम्पशंस कर सकते हो। डाटा मुझे पता नहीं है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि इट्स 10 मीटर, ठीक है। 56, L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 10 मीटर। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज 1000 आ जाएंगे, 1000 मीटर क्यूब। अभी आप क्या कर रहे हो कि लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो न्यू लेंथ जो होगा, न्यू लेंथ एल डैश, वो आपके 11 हो जाएंगे। 10% 10 का निकालोगे तो 10 का 10%। सिमिलरली ब्रेथ की बात करो, 20% है तो 12 हो जाएंगे, एंड हाइट 50% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 का 50%, आप करेंगे 5, 10 + 5 15 हो जाएंगे। तो न्यू वॉल्यूम की बात करूँ, अगर मैं वॉल्यूम डैश की बात करूँ, तो 11 × 12 × 15, 11 × 12 × 15, 11 × 12 × 15 करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशंस करके देखना पड़ेगा क्या आता है, ठीक है। जो आपके आ जाएगा 1980,
तो अभी आपको क्या परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहले तो चेंज निकाल लो। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 980। परसेंटेज निकालना है तो आप इसको क्या करें, ठीक है, 980 हो गया। अब इसको आप परसेंटेज चेंज निकालना है तो ओरिजिनल से डिवाइड करना पड़ेगा। ओरिजिनल कितना है, वॉल्यूम 1000 है, ठीक है। एंड परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 98/10, 98%। तो इतना परसेंट से चेंज होंगे वॉल्यूम। ओके, सो ऑप्शन सी होंगे 56 के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 57 क्वेश्चन में है कि एक अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पी क्यू आर इन सच वे दैट कि 93, 24 एंड 55 आर डिडक्ट कर लिया गया अमाउंट, देन द रेशियो बिकम्स 3:4:5। तो चलो ठीक है, तो आप क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैं बात करूं पी का जो 57 क्वेश्चन है, पी का जो शेयर है अगर मैं कंसिडर करता हूँ 3K है, एंड क्यू इज 4K एंड आर इज 5K। ये शेयर कब है, रिडक्शन के बाद। तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल शेयर का कंपोजिशन जो है वो गिवन है आपको 9400, 3K प्लस 4K प्लस 5K आफ्टर डिडक्शन। शेयर रेशियो कब ऑब्टेन होता है, आफ्टर डिडक्शन। तो आप क्या करोगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 93, 24, 55। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 + 4 7, 7 + 5 12 के, 12K इज टू 900। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा ये 9222, 9228। तो के का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 9222/12। तो हमें क्या निकालना है, तो शेयर ऑफ पी। तो शेयर ऑफ पी क्या था, 3K, 39228/12, 3 4 12, और इसको सिंप्लीफाई करके हमें निकल के आ जाएगा 2307। तो पी का जो अमाउंट होंगे, जो पी को रिसीव होगा, 2307 रुपीज होंगे। 57 के ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। वेरीज का मतलब होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल वर्ड में समझो तो ये प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। क्या बोला, पी स्क्वायर वेरीज एज आर। तो पी स्क्वायर वेरीज एज आर, तो प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट आता है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज टू के टाइम्स ऑफ आर, एंड क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर। क्यू भी वेरी कर रहा है, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि दोनों का वेरिंग का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सेम है या नहीं है। तो मैं अलग कांस्टेंट ले लेता हूँ, इसको के की जगह पे मैं एल ले लेता हूँ, ठीक है। के एन एल जो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेंशन है पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। इसका रीजन आगे चल के समझ में आएगा क्यों ये मेंशन है, ठीक है। अभी मुझे पूछा गया फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करना है कि सम जो होंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलो करके देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड का रिजल्ट है के आर प्लस एल आर। के एन आर क्या है कि यहाँ पे मैं फिर से लिख के देता हूँ, के एन एल आर कॉन्स्टेंट। मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट कंसिडर किया हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। वेरीज का मतलब, अब आप क्या करो, आर कॉमन ले लो। सो यहाँ के प्लस एल हो जाएगा, के भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का सम तो कांस्टेंट आएगा ना, लाइक 2 and 3 ले लो, 2 + 3 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, ये भी वेरी हो रहा है आर के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। सो ऑप्शन 58 का जो ऑप्शन नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अभी पी क्यू प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट करने के लिए कुछ नहीं, जो आपने जो इनिशियल एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करेंगे, के एल आर स्क्वायर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा के एल क्यू रूट एंड आर। फिर से के एल प्रोडक्ट कांस्टेंट के प्रोडक्ट भी कांस्टेंट ही आता है, उसका रूट भी कांस्टेंट ही आएगा। हमें तो जस्ट जो चाहिए वो दिख रहा है, प्रोपोर्शनलिटी आर दिख रहा है, तो प्रोडक्ट भी आपके प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोडक्ट भी आपके प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं स्टेटमेंट 2 को भी करेक्ट बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की बात करते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो, आर कॉमन ले लेंगे तो के माइनस एल टाइम्स ऑफ आर, फिर से प्रोपोर्शनल आ गया कांस्टेंट। यहाँ पे पी एंड क्यू इक्वल्स क्यू नहीं बोला था, अगर इक्वल्स होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने डज नॉट इक्वल्स दिया था। तो ये तीनों को तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे 58 के, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम एंड वर्क के ऊपर है, एफिशिएंसी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्वेश्चंस का डाटा। इस तरह से दे रखा है, पी नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए वर्क इन ट्यूजडेज, ठीक है। सो पी नंबर ऑफ मैन, लाइक मैन M1 की बात कर लूँ, ठीक है।
ये फिनिश कर रहे हैं वर्क को क्यू डेज में, यहाँ पे डेज है, ये आपका मैन है। ओके, अभी आप 50% मोर मैन की बात कर रहे हो तो P+P/2 हो जाएगा 50%। ओके, तो जो डेज है, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, Q-R हो जाएगा, Q-R हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ओके, सो PQ स्टार्टिंग का जो P% था, क्यू डेज में वर्क को फिनिश कर रहा था, सेम वर्क को आपने 50% से इंक्रीज किए वो पर्सन को, तो डेज रिड्यूस हो गया था। P+P/2 इज 3P/2, Q-12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। 2Q इक्वल्स टू 3Q एंड 36 इक्वल्स टू Q। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 36 होंगे। अगर P% काम कर रहे होंगे उस काम को फिनिश करने के लिए तो उसको 36 डेज लगेंगे, लेकिन अगर आप 50% से इंक्रीज करा दोगे तो 24 डेज में काम फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो 59 के ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। जनरली यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। 60, पहले सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशंस को। जो गिवन एक्सप्रेशंस गिवन डिवाइडेड बाय B² +3B +1/B, ये गिवन एक्सप्रेशन है। A एंड B आर पॉजिटिव, ये आपको मेंशन किया गया, A एंड B आपका पॉजिटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो तो A+3 +1/A, ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, B+3 1/B। ओके, A+1/A+3B+1/B+3। ओके, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है उसकी आप उनकी रेसिप्रोकल से ऐड करोगे तो हमेशा उसका लिस्ट वैल्यू 2 आते हैं, ठीक है। ये एम जीएम का कॉन्सेप्ट है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम होता है, बट आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो कि एक कोई पॉजिटिव नंबर्स है, आप उनकी उसकी रेसिप्रोकल के साथ ऐड करोगे तो वो नंबर्स एक्सीड करता है, एटलीस्ट वैल्यू जो होगा, लिस्ट वैल्यू जो होगा उसका 2 होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दो पॉजिटिव नंबर्स है, एक ए बी पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन A × 1/A का पावर 1/2। यहाँ से समझ में आता है कि A+1/A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ, 3 ऐड कर देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें ये 3 भी है ना, तो 3 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। सिमिलरली B+1/B+3, इसका वैल्यू भी लिस्ट वैल्यू 5 आएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें लिस्ट मिनिमम वैल्यू की बात किया गया, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम क्या निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये एक न्यू सेगमेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस के लिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर, किसी एक से सॉल्व होना चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से। किसी एक दो स्टेटमेंट दिया जाएगा एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन के लिए किसी एक स्टेटमेंट से भी वो क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो ऑप्शन ए टिक करना है। इफ द क्वेश्चन कैन आंसर्ड बाय द स्टेटमेंट अलोन, या तो ए से भी सॉल्व हो सकता है या तो बी से भी सॉल्व हो सकता है, तो उस केस में आप ऑप्शंस बी मार्क करेंगे। इफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, मतलब ऐसा है कि 50-50, मतलब ऐसा है, कुछ पार्ट आप ए से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पार्ट बी से सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, बट आप कंबाइन करते हो दोनों स्टेटमेंट को और आप ट्राई करते हो सॉल्व करने का और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उस केस में ऑप्शन सी आपको मार्क करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट, तो आप मार्क करेंगे डी को। तो स्टार्ट करते हैं 61 का। 61 में क्या है कि 4 पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, एबीसीडी आर द पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें बोला कि एबीसीडी इज द क्लोजेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ एबीसीडी। आप इनको ना प्रोडक्ट करते हो ना, प्रोडक्ट करते हो, जो रिजल्ट आता है विच वन ऑफ एबीसीडी इज द क्लोजेस्ट, तो किसके क्लोजेस्ट आता है ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। चलो स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बता रहा है आपको कि ए इज द हायर देन बी देन सी, ठीक है। मीन्स ए सबसे बड़े वैल्यू है, फिर बी है, फिर सी है। विच वन ऑफ एबीसीडी इज द क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एबीसीडी, ठीक है।
तो अगर आप डी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है स्टेटमेंट वन में, डी किससे बड़ा है किससे छोटा है मैं कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ ना। अगर मैं कुछ नंबर्स पिक करता हूँ, रैंडम नंबर्स लाइक 4 3 2, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करता हूँ, डी मुझे पता नहीं है, तो आप 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 डी आ जाएगा ना। अब आप ये किसके क्लोज है वो बताना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टेटमेंट वन तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। स्टेटमेंट टू क्या बता रखा है कि सी इज द नॉट स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब ये सी इज नॉट स्मॉलेस्ट बोला है, तो आप क्या कर सकते हो, ए बी सी, सी इज नॉट स्मॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, डी हो सकता है ना। ठीक है, सबसे छोटा क्या हो सकता है, डी हो सकता है। बट अगर कंबाइन करते हो दोनों स्टेटमेंट को तब, अगर आप कंबाइन नहीं करते हो तो फिर भी सॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके सॉल्व करता हूँ, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल अगर सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो नहीं बन पाएगा। अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट बताया था कि ए इज हायर देन बी, बी इज हायर देन सी, एंड सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है अगर मैं कंबाइन करता हूँ सी इज नॉट स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स डी स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा सकते हो। अब आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में कि इसका प्रोडक्ट किसके क्लोज होंगे, विच वन ऑफ द एबीसीडी इज द क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एबीसीडी। ठीक है, तो जो सबसे बिगर होगा आप उसके क्लोजेस्ट बोल सकते हो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों स्टेटमेंट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इन द 62 क्वेश्चंस, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट इवन है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट इवन है तो फर्स्ट प्राइम नंबर टू होता है, और वो पहला प्राइम नंबर है जो इवन होता है तो टू होता है। मीन्स जो आप इसमें से जो एक नंबर्स होंगे डेफिनेटली टू होने वाला है। एक नंबर्स क्या होने वाला है, टू होने वाला है, क्योंकि प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर के लिए क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टू होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कौन सा नंबर आपका टू है। अब क्वेश्चंस का डिमांड है, सिनारियो ऐसा है, mn - n+1, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट वन बता रहा है कि चलो m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, m और n आप इस तरह से पिक करो, m ना n से हायर होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चंस। m आप क्या करो, 3 पिक कर लो, n 2 रखो, क्योंकि अगर एम को टू लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नंबर्स पिक नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि नंबर पिकिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मुझे मेंशन नहीं है कि एम क्या है एन क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका इवन नंबर टू है तो एन टू होगा। एम आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चल सकता है, बाकी रिमेनिंग प्राइम नंबर्स आप पिक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इससे पुट करेंगे वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगा आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वन ऑफ द नंबर इज टू, एक नंबर टू है तो दूसरा नंबर आप कोई भी पिक करो, इससे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आप दोनों यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब अकेला स्टेटमेंट वन भी सॉल्व कर पा रहा है क्वेश्चन को, अकेला स्टेटमेंट बी भी सॉल्व कर पा रहा है क्वेश्चन को, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन 63 क्वेश्चन क्या है, p इज द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो p इज इक्वल्स टू z प्लस गिवन है, एंड रिमाइंडर निकालना है व्हेन p की पावर n इज डिवाइड बाय p+1। ठीक है, तो आपके पास जो वेरिएबल है p और n है, इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट p के बारे में तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्वेश्चंस में कि p आपका इंटीजर z प्लस है, तो आपको n चाहिए। चलो स्टेटमेंट वन की बात कर रहे हैं, n इज इवन, चलो हो गया काम, एन इवन हो या ऑड हो कुछ भी हो, हम रिमाइंडर तो निकाल ही सकते हैं ना। ठीक है, एन आपका इवन है, अगर आप एक सिंपल सा जेड इंटीजर की बात कर रहे हैं, जेड प्लस की बात कर रहे हैं, अगर मैं पी को ना 4 ले लेता हूँ या 5 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, और एन को यहाँ पे बोला है इवन है तो मैं 2 ले लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर एंड फिर 4+1, 16/5, हमारा रिमाइंडर इसको सॉल्व करके निकल सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टेटमेंट टू बोल रहा है पी इज ए इवन नंबर, क्या सिर्फ पी के बारे में इंफॉर्मेशन था, पी इंटीजर था, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर था और वो इवन नंबर है, एन के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं ना, एन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सेकेंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मैंने समझाया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो डाटा चाहिए था, पी और एन चाहिए था।
पी ऑलरेडी मेंशन था क्वेश्चंस में, और इसने सेकंड स्टेटमेंट ने पी को और स्पेसिफिक कर दिया कि आप पी ना इवन नंबर पिक करो, बट एन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम इस स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ द क्वेश्चंस कैन आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, सिर्फ एक स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। ठीक है। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है कि अगर मैं कंबाइन करता, कंबाइन करके भी तो मुझे देखना चाहिए ना, कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हैं, यस, कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर इसका ना, अगर आप कंबाइन करते, पी भी इवन है, एन भी इवन है, फिर भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो इसके लिए ना एक और आंसर सही हो सकता है, ए और सी दोनों का दोनों सही हो सकता है 63 का। नेक्स्ट 64, 64 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, एक्स वाई इज पॉजिटिव। आप खुद बताओ दो नंबर पॉजिटिव कब होंगे, या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों का दोनों निगेटिव होना चाहिए, ये सिनारियो होगा। ओके, तो दोनों का दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों का दोनों निगेटिव हो। चलो स्टेटमेंट, दोनों केसेस आना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं पॉजिटिव होने का, तो दोनों का दोनों एक्स और वाई दोनों का इन्फॉर्मेशन आना चाहिए स्टेटमेंट में। चलो स्टेटमेंट वन की बात करते हैं। अरे यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया ना, सिर्फ एक ही पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, एक्स के बारे में। एक्स क्या बता रहा है, निगेटिव क्यूब रूट है, निगेटिव क्यूब रूट है, एक वैल्यू है 0.19, जरूरत नहीं सॉल्व करने का, 683 का क्यूब रूट है, तो ये तो निगेटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब वाई के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वाई क्या है नहीं है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, स्टेटमेंट वन से आप सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेटमेंट टू से देखते हैं क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट टू ने रिलेशन दे दिया है वाई और एक्स का, ये बता रहा है कि y इज अ क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तो अब बन जाएगा क्वेश्चन, अगर y क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक है, तो अगर आप x इंटू वाई करते हो, x एंड x के पावर वन थर्ड करते हो, तो ये क्या बन जाएगा, x के पावर 4/3, एक्सपोनेंट रूल लगाना है, पावर ऐड करेंगे व्हेन द टू एक्सपोनेंट आर मल्टीप्लाइड देन पावर इज एड अप, सो 1 + 1/3 4/3। तो मैं इसको तरह से लिख सकता हूँ वन थर्ड की पावर 4, ये 4 इवन नंबर्स आ गया तो पावर इवन आ गया, तो प्रोडक्ट इसका हमेशा इवन आएगा। तो हम स्टेटमेंट टू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट वन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आएंगे, एक स्टेटमेंट से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ओके, अच्छे क्वेश्चन है कि इज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आपके कंडीशंस क्या बनना चाहिए, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल्स या ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल्स। तो स्टेटमेंट वन की बात करते हैं, क्या स्टेटमेंट वन तीनों साइड को इक्वल बता पा रहा है, चेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको टू मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² हो जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब किसी भी रियल नंबर्स की बात कर लो, एबीसी ट्रायंगल्स का साइड है तो वो आपका रियल नहीं होगा, उसका वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो तीन पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो एक ही केस में हो सकता है, जब वो तीनों जीरो जीरो इंडिविजुअल को जीरो असाइन करेगा, लाइक ए माइनस बी भी जीरो होगा, बी माइनस सी भी जीरो होगा, सी माइनस ए भी जीरो होगा, एक केस है। फिर इनका स्क्वायर का सम जीरो आएगा, तो ए माइनस बी कब जीरो होगा, जब ए इक्वल्स टू बी होगा, बी माइनस सी कब जीरो जीरो होगा, जब बी इक्वल्स टू सी होगा। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो आपका स्टेटमेंट वन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। क्या स्टेटमेंट टू से हम सॉल्व कर पा सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करेगा तो देखो 3a² को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एंड 3b² को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो रिमेनिंग बच क्या होगा, 2a²। ठीक है, 2b², 2a² को मैं बाद में यूज करूंगा, 2b² प्लस c² माइनस 4bc। मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ कि सो दैट एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। तो हमें बच गया था 2a² बच गया था लेफ्ट साइड में, एंड c² का एक c में यूज कर चुका हूँ स्क्वायर, तो 3c² बच गया होगा माइनस 4ca।
ये दोनों तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर, और इस पार्ट का कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये सॉल्व करने का, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो मुझे कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा कि ए बी सी इक्वल्स है या नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 से आप सॉल्व नहीं कर सकते, स्टेटमेंट 1 से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कि कोई भी एक स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 में बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ एंड ब्रेथ इज पी, सो पी इसका स्टॉप का क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्ट्रिक्टली नॉट ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ एक्स एंड वाई इज क्यू। तो ये पैरेललोग्राम्स का एरिया निकालना है, तो पैरेललोग्राम्स का एरिया हम इस तरह से बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। चलो मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ये थीटा हो जाएगा, ये हाइट एच हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज करूंगा तो साइन थीटा इजकल्स टू एच बाय वाई हो जाएगा। एच इजकल्स टू क्या हो जाएगा, वाई साइन थीटा हो जाएगा। तो क्यू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट यूज करेंगे, एक्स इंटू एच। तो क्यू आपका हो जाएगा एक्स वाई साइन थीटा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोला है कि पी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, हमेशा नहीं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से हाइयर होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। अभी साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो मैंने पिक किया हूँ, एक्यूट एंगल पिक किया हूँ, तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, 2 × 0.5 करेंगे, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच का हो और एक पॉजिटिव नंबर जो 1 से बड़े नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से चलो ठीक है, तो बाद में डिस्कस होगा। पहले स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है कि आपकी जो रेशियो है ना, साइड का रेशियो, वो क्या है, 2:1 है। 2:1, तो साइड का रेशियो तो दोनों एक्स इंटू वाई दोनों में आ रहा है। तो एक साइन थीटा बचता है। तो साइन थीटा मतलब यहाँ पे एक्स और वाई के रेशियो से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता है। थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और देखो इसने क्लियरली मेंशन किया था कि स्टेटमेंट में जो था, स्टेटमेंट से पहले जो पैरेललोग्राम्स है वो आपका रेक्टेंगल्स नहीं होना चाहिए। तो थीटा 90 भी नहीं हो सकता है। अगर 90 हो जाता उस केस पे दोनों इक्वल्स हो जाता, दोनों क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। तो अगर ये रेक्टेंगल नहीं है तो थीटा 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। 0 से 90 में ये वैल्यू 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होगा तो क्यू का वैल्यू भी आपका पी से छोटा हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। स्टेटमेंट 2, इसमें फिक्स कर दिया, टू एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज 60 डिग्री, और 60 है तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। ये भी आपका 1 से छोटा है, रेशियो 1 से छोटा है। तो अगर आप पुट एक्स वाई तो दोनों में कॉमन है ना, तो एक्स वाई कॉमन है तो ये 1 से छोटा है तो क्यू आपका लेसर होगा। तो ये भी आपका वैलिडेट कर पा रहा है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट होंगे। 67, a circle touches all the four sided of quadrilaterals। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल्स है, ये इसके सर्कल को टचेज कर रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल की साइड है A B C D। ओके, तो चलो एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट होगा तो उसका लेंथ सेम होगा। अगर मैं इस पॉइंट को P लेता हूँ, इस पॉइंट को Q लेता हूँ जो टच कर रहा है, R S लेता हूँ, तो AP और एस दोनों इक्वल्स होगा। इससे बेटर है कि हम इसको एक्स वाई जेड के फॉर्मेट या एबीसीडी के फॉर्मेट प्रेजेंट करता हूँ। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सेम लेंथ होगा। एक्सटीरियर पॉइंट ए है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अगर एक्स वाई, ये डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू होगा, और ये जेड है तो ये भी जेड होगा, क्योंकि सारे के सारे एक्सटीरियर पॉइंट से निकल के आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालने की ट्राई करूँ, ए बी, स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, ए बी प्लस डी सी, 2
10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अभी चलो ये स्टेटमेंट 1 निकल के आया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 10 सेंटीमीटर है तो क्या आप पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल निकाल सकते हो क्या? ये सब निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल्स का सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंशियल लेंथ, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आ रहा है, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो स्टेटमेंट 1 से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 1 से सॉल्व कर सकते हो क्या, स्टेटमेंट 2 से सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते हैं। एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी करते हो तो एडी प्लस बीसी भी अगर आप ऐड करके देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ही दे रहा है आपका। और पेरीमीटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर अगर आप यहाँ पे निकालने की ट्राई करो तो पेरीमीटर क्या आ रहा था, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू चाहिए, जो कि स्टेटमेंट 1 से भी आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी आ रहा है। ठीक है, हम दोनों स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे ना कंबाइन आपको तब करना है जब ये वैलिडेट नहीं हो पा रहा है स्टेटमेंट 2। देखो स्टेटमेंट 1 से पहले देखो इंडिविजुअल सॉल्व करने का ट्राई करो दोनों में से, फिर स्टेटमेंट 2 पे जाने का रहता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो आपके जो ऑप्शंस की जो सिनारियो होते हैं, फिर आप कंबाइन करके देखना रहता है। अगर हमें दोनों इंडिविजुअली से सॉल्व कर रहा है तो आपको कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है। कंबाइन आप तब करोगे जब आप इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चला तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले आप क्या करते हैं, दोनों से सॉल्व कर लेता है, तो दोनों से सॉल्व होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसके कंबाइन करने से तो सॉल्व होगा ही होगा ना क्वेश्चंस। तो कंबाइन नहीं करना है। कंबाइनिंग के लिए कब देखना है, जब एक सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एक सॉल्व कर पा रहा है, या दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम कंबाइन करके देखते हैं, क्या पता सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। 68 वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 68, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द rhombus मतलब साइड बाय डायगोनल का रेशियो फाइंड करना है। ओके, वन डायगोनल ऑफ द rhombus इज इक्वल टू इट्स साइड। हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि उसने बोला कि जो आपका वन डायगोनल है रोम्बस का इक्वल टू इट्स साइड है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो स्टेटमेंट 1 से आप सॉल्व कर सकते हो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं था। समझा क्या, हमें क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था। क्या आप रेशियो निकाल सकते हो, तो इसने पहले बोल दिया कि जो आपका साइड का लेंथ है और जो डायगोनल का लेंथ है वो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो उसका रेशियो निकल के आ जाएगा 1:1। तो स्टेटमेंट 1 से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। स्टेटमेंट 2 बोला लॉन्गर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, तो लॉन्गर डायगोनल, अच्छा, यहाँ पे रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिससेज कर लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एक लेंथ एक डायगोनल के इक्वल है, तो हमें डायगोनल का रेशियो पूछा है, साइड टू डायगोनल नहीं पूछा है। रोम्बस है यहाँ पे, तो देखता हूँ, ट्राई करते हैं कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर ये ए है, ये ए है, तो एक डायगोनल ए होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑब्वियस नहीं होगा क्योंकि ये बड़े वाले डायगोनल होते हैं। तो एक डायगोनल का लेंथ मान लो D1 को मैं ए लिया हूँ, जो क्वेश्चंस में दे रखा है स्टेटमेंट 1 में, तो क्या आप D2 निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये लेंथ ए है तो ये वाला लेंथ आपका a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो ABCD, आप एओ निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, एओ निकल गया, फिर उसको डबल कर देंगे तो लॉन्गेस्ट डायगोनल भी निकल के आ जाएगा, तब भी हम निकाल सकते हैं। समझा आप सभी को? ठीक है, क्या करना था, अगर आप एक डायगोनल का लेंथ आपको मिल जाएगा साइड के इक्वल्स है तो मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्गर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। इस बार लॉन्गेस्ट डायगोनल दे दिया है, लॉन्गेस्ट डायगोनल दे दिया है इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ना वो √3 टाइम्स है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपको अ, एक डायगोनल मिल जाएगा तो आप दूसरा डायगोनल भी फाइंड कर सकते हो रिलेशंस की फॉर्म में, साइड के रिलेशंस की फॉर्म में। ये बोल रहा है अगर मैं इसको ए लेता हूँ, ये ए लेता हूँ, रोम्बस है, ये √3 टाइम्स ऑफ ए है, तो दूसरा डायगोनल मैं निकाल सकता हूँ क्या, आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, फिर अभी समझाता हूँ कि ये एक एंगल बाइसेक्टर होता है, तो जो लेंथ ये होगा ये लेंथ ये भी होगा, इसको हाफ कर देना, इसको हाफ कर देना, ये आपको ए पता है, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 ए हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये वाला लेंथ निकाल सकता हूँ, जो ये वाला लेंथ है ये वाला भी निकल के आ जाएगा, और सिमिलरली आप ये भी लेंथ निकाल सकते हो डबल करके, तो दूसरा डायगोनल भी मिल जाएगा। तो आप दोनों स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, 69
Question number 69. The chord of the circle of the radius r touches at the point on the circumference of the concentric circle of radius small r. ठीक है, दो सर्कल बनाते हैं पहले. R and R. Just a second.
Okay, thank you. 30 questions. Okay, question. So in this question 69, the chord of the circle of radius r touches at the point of circumference of circle of a small circle which have radius small r, capital R. So the length of the chord is 24 unit. If I consider this one is A and B, so AB is given as 24 units. So AB will be the equals to 2 times of r square minus r square equals to 24. So r square minus r square root is 12. So r square minus r square is 144. 144. Okay. अभी क्वेश्चंस क्या है कि इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर होना चाहिए। पूछा गया कि आप कैपिटल आर और स्मॉल आर के वैल्यू क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अब स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है कि स्मॉल आर इज एन इंटीजर। तो अगर स्मॉल आर एक इंटीजर है बट कैपिटल आर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या है मेंशन होना चाहिए ना। तो आप स्टेटमेंट 1 अगर मैं स्मॉल आर को एक इंटीजर ले लेते हो तो इंटीजर ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं चलो कैपिटल आर को मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कैपिटल आर के बारे में, सिर्फ स्मॉल आर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो सेपरेटली तो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। दोनों स्टेटमेंट को अगर आप पिक करते हो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सेपरेटली, तो दोनों स्टेटमेंट को अकेले अकेले से आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपके रिलेशन आया था आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो ये आर प्लस आर और आर माइनस आर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो दोनों चाहिए मुझे ना, कैपिटल आर का भी वैल्यू चाहिए और स्मॉल आर का वैल्यू भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो अकेले में सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, बट इन दोनों स्टेटमेंट को जब मैं कंबाइन करता हूँ, ये बोला दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, फिर आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर आप इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट, पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बोला है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स तो मैं इसे पिक करता हूँ कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल्स होता है। तो पी क्यू आर ए बी सी डी। ठीक है, इसका साइड लेंथ में 10 ले लेता हूँ। ठीक है, 10 ले लेता हूँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। अब इसके मिड पॉइंट से एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स बनाना था, पी क्यू आर एस, मिड पॉइंट से पी क्यू आर एस, तो ये भी आपके स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये 10 है तो मिड पॉइंट है तो ये 5 होंगे, ये भी 5 होंगे और ये 5 √2 हो जाएंगे। तो अगर मैं पी क्यू आर एस के लिए मतलब फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की बात करूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एबीसीडी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 10 लिया था क्योंकि 100 स्क्वायर बोला था तो 10 ले लिया था, क्योंकि मैंने स्क्वायर एजम्पशन किया हूँ, मैंने स्क्वायर किया हूँ, तो यहाँ से ये 100 आ गया था। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस निकालना। क्या आप डिफरेंस निकाल सकते हो, मतलब निकाल सकते हैं। अगर मुझे एबीसीडी का एरिया पता है तो एबीसीडी पता है, मैंने स्क्वायर ट्रीट किया हूँ, तो स्क्वायर 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा शायद। फिर मिड पॉइंट निकालूंगा, फिर इनर वाले साइड का लेंथ निकाल के मैं एरिया निकाल सकता हूँ, फिर डिफरेंसेस भी निकल के आ सकता है। ठीक है, ऐसा हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस 50 स्क्वायर मीटर, फिर भी निकाल सकते हैं अगर 50 है तो। हाँ, बट ये सारे केसेस में नहीं होंगे, ये स्क्वायर है इसलिए सॉल्व कर पा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। तो ये अगर मैं बात करूँ सारे क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो सारे क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड नहीं हो सकता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आपका डाटा, मैं अगर बात करूँ इन जनरल, बात होता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे सिनारियो को वैलिडेट करना चाहिए, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि ये सारे सिनारियो में डील नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर केसेस से स्क्वायर के लिए मैंने पिक किया तो सॉल्व हो गया। तो बच्चों को लग रहा होगा कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है, दोनों से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं, बट ऐसा नहीं है।
मैं अगर यहाँ पे रोम्बस ले लेता हूँ या पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, फिर बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता है कि क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट को आप टुगेदर लेते हो तब भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, इन ए पाई डायग्राम रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर दे रखा है। तो मुझे पूछा क्या, पी इज द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेक्टर एंड क्यू इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ पी प्लस क्यू। पहले तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि जो आपका जो सेक्टर का कम रेशियो दे रखा है, 2K प्लस 3K प्लस 7K प्लस 5K प्लस K, सेंट्रल एंगल दे रखा है, सेंट्रल एंगल्स का रेशियो दे रखा है, ये आपका 360 हो जाएगा। तो 3 to 5, 5, 5, 10, 17, 18K इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो K इक्वल्स टू 20 डिग्री हो जाएंगे, 20 डिग्री हो जाएंगे। अभी इसमें क्या पूछा है कि P इज द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेक्टर, तो स्मॉलेस्ट सेक्टर तो K टाइम्स होगा ना, जो 1 है, एंड Q इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर, लार्जेस्ट सेक्टर आपका 7 हो जाएगा। तो उनके सम पूछा गया है, P प्लस Q का सम पूछा गया, तो P आपका 7K है, Q आपका K है, क्योंकि ये आपका लार्जेस्ट है, ये आपका स्मॉलर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8K हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो 8K मतलब एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थीटा थीटा आपका निकल के आ जाएगा, थीटा ये तो थीटा है, पी प्लस क्यू ये जो निकाला हूँ थीटा निकल के आया, सेंट्रल एंगल निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे अभी एरिया कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, 8 के मीन्स 8 इंटू 20 160 हो जाएगा, 360 पाई, रेडियस आपको गिवन है 7 स्क्वायर मीन्स 49। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 and 9, 4/9, पाई आपका 22/7 होता है, ये 49 है, ये हम कैंसिल करेंगे 7 आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं, 88 इंटू 7/9, तो जो कि आपका निकल के आ जाएगा 616, 616/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 71 का ऑप्शन डी करेक्ट होंगे, 71 का ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। अभी पी इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर देन द वैल्यूज ऑफ 9P। ठीक है, ओके, तो P, जैसे इस पे जो P है ना, P क्या था आपका, P इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, तो स्मॉलेस्ट सेक्टर इस पर P को कंसिडर किया, तो जो आपका K है, K टाइम्स सेंट्रल एंगल मीन्स 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करो, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे बन रहा है स्मॉलेस्ट सेक्टर के लिए, वो आपका K बन रहा है, 1K बन रहा था, 1K बन रहा था, K तो आपका 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। मैंने इसका पेरीमीटर निकालना था सेकंड क्वेश्चन में, 72 में पेरीमीटर, तो ये तो रेडियस होगा, ये तो रेडियस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एल आर्क लेंथ होता है, क्या होता है, आर थीटा, थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में आना चाहिए। ठीक है, तो पेरीमीटर की बात करो तो 2R प्लस आर थीटा, थीटा आपका रेडियन में, आर आपको गिवन है, आर कितना है, 7 है। ठीक है, एंड आर आपका फिर 7, थीटा कितना है, 20, रेडियन में निकालना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करो, ठीक है, आपको पता है कि 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होगा, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 14, 7, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 9 लिख सकता हूँ मैं, 7/9, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स 9 प्लस 22/9। ओके, अब इसको, अच्छा इसमें आपको क्या पूछा गया, 9P पूछा गया, तो डाटा बहुत अच्छे से दे रखा है, 9 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर पूछा गया, तो 9 को अपोजिट साइड लेके चले जाओ, 14 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 22, तो 9, ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, 9 4 36, 36 प्लस 2 148 सेंटीमीटर आ जाएंगे, 148 सेंटीमीटर आ जाएंगे आपके पेरीमीटर आ जाएंगे सेक्टर के, स्मॉल सेक्टर के, तो 72 के ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन,
ट्रेन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या बोला है, टू ट्रेन ए बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेशन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली टुवर्ड इच अदर। ओके, टू ट्रेन ए एंड बी started from the station P and Q. Train A is moving and train B is moving each other. Okay. ट्रेन ए स्टार्टेड 7 PM, इसका जर्नी स्टार्ट होता है 7 PM पे, 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ट्रेन बी स्टार्टेड 4 AM नेक्स्ट डे। ओके, तो टाइम ड्यूरेशन की बात करूं कितना लेट या मतलब लेट बोले मतलब कि जो ट्रेन ए है कितना टाइम ज्यादा ट्रेवल किया है, तो 7 से 4 एम के बीच में हमें टाइम देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें पूछा गया कि हाउ फार द स्टेशन क्यू विल बी द टू ट्रेन मीट, कितने डिस्टेंस ट्रेवल के बाद, ठीक है, क्यू से निकालना है, क्यू से निकालना है कि दोनों ट्रेन आपके मीट करते हैं, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका क्यू मीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो दे रखा है 7 और 4, अगर मैं आप बात करूँ तो ट्रेन ए ना 9 आवर ट्रेवल किया होगा, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपका ट्रेन भी स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है ना, तो ट्रेन एक 9 आवर ट्रेवल करने के बाद ट्रेन भी फिर स्टार्ट किया जर्नी, तो तब तक ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए इन 9 आवर निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस इजकल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इजकल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा 60 × 9, जो कि हो जाएगा 550 540 किलोमीटर हो जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में मेंशन है 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर में से जो ट्रेन ए है, ट्रेन है ऑलरेडी 540 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, तो बच गया कितना डिस्टेंस, जो रिमेनिंग डिस्टेंस की बात करूं, 800 माइनस 540, ये हो जाएगा 260 किलोमीटर। अभी भी 260 किलोमीटर रिमेनिंग है। अब ये 260 किलोमीटर में अगर क्यू एक्स किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो पी चलेगा 260 - x, क्योंकि दोनों को मीट होना है। एक तो कॉमन पॉइंट होगा ना जहाँ पे मीट कर रहा होगा, जहाँ पे मीट कर रहा होगा, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। अगर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर मूव किया है, तो ट्रेन ए 260 - x मूव करेगा, फिर वो मीट करेगा। उस टाइम दोनों का टाइम सेम होगा, क्योंकि मीटिंग टाइम लाइक कोई एक पर्टिकुलर टाइम मीट किया होगा। तो यहाँ पे जो डाटा होगा मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। टाइम, तो टाइम इज अगर मैं बात करूं, अगर आप टाइम निकालते हो तो टाइम इज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ट्रेन बी ने x किलोमीटर चला है, वेलोसिटी उसका कितना था 90 से, तो ट्रेन ए ने 260 - x किलोमीटर चला है, स्पीड 60 से। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 30 के मल्टीपल है 3 तो 2x इज टू, ठीक है, ये हो जाएगा 780 -3x, so 5x is equals to 780, so x equals to 780/5, 780/5 हो जाएगा 156 किलोमीटर। 156 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद मीट करेंगे दोनों, सो 73 के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 74, एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट, तो टाइम क्या होगा, यही तो टाइम था ना, ये आप जो डील किए थे, मैंने क्या बोला था, एक कॉमन टाइम होगा जहाँ पे मीट कर रहा होगा। तो 74 का टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम इज टू x/90 हो जाएंगे। x आपका क्या है 156 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था, 156/90 करेंगे, तो ये हमारा जो निकल के आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या निकला, एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन मीट पूछा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 4 से 4 से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 26 20 52 156 ना, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, ये डाटा x/90, टाइम इज x/90, सो 156/90, ओके। ओके, पहले इसको मैं 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 5 जा 15, 3 32 30, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे, 26/15, 26/15 आ जाएंगे। इतने आवर ट्रेवल करने के बाद मीट क्या होगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूँ,
26/15 इंटू 60, 10/60, ये हो जाएगा 104। ये बी से निकाल लो, ये जो टाइम है ना, x/90 किसका है, बी का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बी का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था 4 AM मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कब स्टार्ट किया था, 4 AM। 104 कितना हो जाएगा, 60 मिनट प्लस 44 मिनट, मीन्स ये 1 आवर 44 मिनट ट्रेवल करने के बाद मीट किया होगा। तो जो 4 बजे मॉर्निंग है ना, उसके बाद आप 1 आवर 44 मिनट ऐड कर दो, तो 5:44 हो जाएंगे। ये कब मीट करेगा, 5:44 AM पे मीट करेगा, ठीक है, क्योंकि 4 AM पे स्टार्ट हुआ था ना ट्रेन बी। नेक्स्ट पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन ए एंड बी आर 400 एंड 500, लेंथ ऑफ द टू ट्रेन आर ए एंड बी आर 400 एंड 500, सो व्हाट टाइम टेकन देम टू क्रॉस ईच अदर। ओके, यहाँ पे जनरली बच्चे कन्वर्जेंस भूल जाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 900, बट ये मीटर में है, ये आपकी किस में है, मीटर में है। ओके, अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों को क्रॉस करते रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे, तो 90 + 60 150 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर पर आवर को आप क्या करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डाटा आपको मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जनरली। ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इज टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, 900 150 इंटू 5 इंटू 18। अब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा टाइम 21.6 सेकेंड, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखना, इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, 15 6 90, अगेन 6 48, 108/5 आ रहा है, जो कि आ जाएंगे 21.6 सेकेंड के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। ओके, सो एक स्क्वायर गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है जिनके साइड नहीं गिवन है, बट उसमें जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के साइड लेंथ गिवन है आपको। चलो एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए। स्टेटमेंट 60 76 77 एंड 78 तीनों कनेक्टेड है, तो पहले 76 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रायंगल्स है, जिसके साइड लेंथ गिवन है 6 8 10। ओके, सो ए बी सी डी, सो एफ ई, बात करते हैं हमें गिवन क्या है। तो C2F कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, FE 6 सेंटीमीटर एंड 10। तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करते हैं 100 आता है, दैट मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 10 इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट मींस ये हाइपोटेनियस है, तो ये एंगल आपका 90 हो गया। ओके, ये 90 हो गया। अल्फा एंड बीटा, दिस टू एंगल्स आर गिवन, दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो साइड ढूंढते हैं, साइड कैसे ढूंढ सकते हैं आप, यहाँ पे एक साइन रूल यूज कर सकते हो, आप साइन रूल यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज हम देख रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, मैं इस क्वेश्चन के लिए इस एंगल्स को थोड़ा टाइम के लिए पी ले लेता हूँ, इसे क्यू ले लेता हूँ, जो अंदर वाले एंगल्स है ना ट्रायंगल्स के, तो क्यू ले लेता हूँ, सो दैट की वी कैन अप्लाई द साइन रूल। साइन रूल, और ये तो 90 है ना, तो साइन रूल क्या होता है, साइन एंगल अपॉन अपोजिट साइड। लाइक अगर मैं यहाँ पे साइन पी लूंगा, तो साइन पी इसके अपोजिट साइड क्या है, 6। अगर मैं यहाँ पे साइन क्यू लेता हूँ, इनके अपोजिट साइड लेंथ क्या है, 8। एंड साइन 90 लेता हूँ, तो 90 के अपोजिट क्या है, 10। तो साइन 90 तो 1 हो गया ना। अगर मैं इन पेयर को सॉल्व करता हूँ, तो साइन पी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 6/10, जो कि हो जाएगा 3/5। चलो मैं कॉस पी भी निकाल लेता है यहाँ से, ये हो जाएगा 4/5,
ठीक है, क्यू भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यू भी निकाल सकते हो, बट मैंने इसको इस तरह से लिया। अगर आप एंगल सी की बात करो इन क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल सी तो कंप्लीट एंगल तो 90 है ना, ये आपका एंगल्स तो 90 है, 90 है, 90 है। तो इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल बी सी ई, बी सी की बात कर रहा हूँ। बी सी में एंगल एंगल सी जो है, एंगल सी, ये आपके क्या होंगे, 90 माइनस पी प्लस अल्फा। ठीक है, ओके। अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको अजम्पशन करता हूँ कि ये जो साइड है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मैं अप्लाई करता हूँ कॉस सी, कॉस साइन ए, कॉस अप्लाई करता हूँ क्योंकि एडजेसेंट साइड चाहिए ना हमें। तो कॉस एंगल सी यूज करता हूँ, कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी तुम्हारा क्या है, पुट कर देते हैं, सी, अब मैं साइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, सी हमारा है कॉस 90 डिग्री माइनस पी प्लस अल्फा। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, साइन पी प्लस अल्फा इजकल्स टू एक्स बाय 10। अब आप साइन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इजकल्स टू एक्स बाय 10। तो इसलिए साइन पी और कॉस पी का वैल्यू मैंने पहले निकाल के रख लिया था। अभी मुझे चाहिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा मेरा निकल के आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल यहाँ पे मैं निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल एफ सी डी, एफ सी डी, इस पे ट्राई कर रहा हूँ कॉस अल्फा निकालने का। कॉस अल्फा इसका क्या हो जाएगा, एक्स बाय एडजेसेंट बाय 8। तो कॉस अल्फा एक्स बाय 8 है, तो साइन अल्फा क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंदर रूट होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 64 का ओवर रूट। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा सारे निकल के आ जाएंगे। तो साइन अल्फा यहाँ से आप बोल सकते हो, साइन अल्फा इज 64 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट अपॉन 8। अब ये सारे वैल्यू पुट करते हैं। साइन पी का वैल्यू हमारा है 3/5, कॉस अल्फा है x/8, कॉस पी है आपका 4/5, और साइन अल्फा है 64 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट बाय 8 इजकल्स टू x/10। सो लेफ्ट साइड में 8 5 जा 40 होता है, मैं 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x इजकल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 40x/10 करेंगे तो 4x हो जाएगा। ओके, सो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, 4x माइनस 3x x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा एक्स स्क्वायर 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इंटू 64 यानी हो जाएगा 4x 16x स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्या हो ना, तो 4 का स्क्वायर भी होगा 16x स्क्वायर, ये 17x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर ही तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, तो ऑलरेडी मुझे एक्स स्क्वायर निकल चुका है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 टाइम्स ऑफ 16 बाय 17। तो 64 इंटू 16 करेंगे तो 6 4 24 होता है, तो एक 24 है, ये निकल के आ जाएगा 1024 अपॉन 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 76 के ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर 76। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व था। एंड द नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा। चलिए इसको भी निकालने की ट्राई करते हैं, tan अल्फा और tan बीटा हमारा क्या होगा। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे x मिल चुका है, x मिल चुका है, ये 8 है, ये जो पार्ट है ना एफ डी, इस पार्ट को ए कंसिडर कर लेता हूँ, और ये वाला पार्ट को बी कंसिडर कर लेता हूँ। बी कंसिडर नहीं भी करेंगे तो तब भी हो जाएगा, तो इसको मैं ए और बी कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को फिर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो टेन अल्फा का वैल्यू, टेन अल्फा से पहले आप क्या निकाल लो, आप साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, 8 ये आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है, हो जाएगा। आते हैं, फिर से डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि पेज वहां पे नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 77 के लिए। 77,
एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। सो एक ट्रायंगल्स है, जो राइट एंगल पे है, ये एंगल्स आपका 90 है, ये एंगल्स अल्फा है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 था, ये आपका 10 था। ओके, मेंशन कैसे क्या क्या था यहाँ पे? ये आपका ए है, बी, सी, डी। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मैंने ए लिया, इस पार्ट को बी लिया, और ये आपका एक्स था, एक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ओके, तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 होगा, और ये आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। ये एंगल्स आपका बीटा है, तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये तो समझ में आ गया इस डायग्राम में कि अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, ए ई एफ की बात करूं, ए ई एफ की बात करूं इस ट्रायंगल में, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 90 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपका 90 आ जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस अल्फा। हमें क्योंकि टेन बीटा भी चाहिए, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट अल्फा। तो बस आप अल्फा पे फोकस करो, बीटा जाने दो, ठीक है। ओके, तो इस ट्रायंगल्स की बात करूं, ट्रायंगल एफ टी टी की बात करूं, तो जो एक्स होगा, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ कॉस अल्फा इसका टू क्या हो जाएगा? एक्स बाई एट। तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8 कॉस अल्फा। आप भले ही वैल्यू निकाल रखे हो, बट वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व तो वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर यूज करने जाएंगे तो, ठीक है। अगर साइन अल्फा की बात करूँ, तो साइन अल्फा इसका टू क्या हो जाएगा? ए बाय एट। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 साइन अल्फा, ठीक है। ओके, अब ऊपर वाले ट्रायंगल्स की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल ए ई ए एफ ई, ठीक है। तो ए एफ में अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा ही निकाल रहा हूँ, कॉस अल्फा निकालोगे तो एडजेसेंट साइड बी है, बी बाई सिक्स, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 साइन अल्फा। अब ए प्लस बी, बी साइड लेंथ है, ए प्लस बी भी आपका साइड लेंथ है, जो एक्स के बराबर होगा, ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। ए आपका कितना है? 8 साइन अल्फा। बी मैंने कितना निकाला हूँ? 6 कॉस अल्फा। यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पे कॉस होना चाहिए। बी 6 कॉस अल्फा इक्वल टू 8 टाइम्स कॉस अल्फा, ठीक है। सो 8 साइन अल्फा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, डिवाइड कर देते हैं। सो टेन अल्फा इक्वल टू 2/8, 1/4। टेन अल्फा निकल के आ गया, सो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमें चाहिए था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और टेन बीटा ही आपका कॉट अल्फा है, अभी समझाया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री है। सो 1/4 प्लस 4, जो कि हो जाएंगे 17/4, 17/4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छे थे आपके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। 77 के ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी डी ई, ठीक है। तो सी डी ई का एरिया निकालना है। ओके, तो अभी आपके पास देखो, सी डी ई का एरिया निकालना, तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसे यूज करो कि प्रोडक्ट ऑफ राइट एंगल साइड भी यूज कर सकते हो। तो ये एक्स ऑलरेडी आपको निकल चुका है। अभी आप क्या करो, इस ट्रायंगल यूज करके ये वाले लेंथ हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपको अल्फा का वैल्यू समझ में आ चुका है, ठीक है। ये 6 पता है, तो आप यहाँ पे साइन अल्फा यूज कर लो, साइन अल्फा इज टू दिस अपॉन दिस यूज करके आप निकाल सकते हो। फिर इसको एक्स में से सब्ट्रैक्ट करके हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 78 भी। कैलकुलेशन बेस्ड है, आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हमें 79 और 80 के लिए एक ज्योमेट्री दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। ओके, एक बिगर सर्कल है, बिगर सर्कल का हमें ABCD is the circle with the center O, and OC is the diameter of the smaller circle. A circle is drawn as the shown in figure given below. OB is 7 सेंटीमीटर, ठीक है। O सेंटर है, तो O से भी आपकी बिगर सर्कल का जो हो गया रेडियस हो गया,
ओबी भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, ओडी भी रेडियस है। ठीक है, तो आप सारे कुछ निकाल सकते हो। ये ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि डायमीटर का एंड पॉइंट है 90 डिग्री बनेगा। हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, स्मॉलर सर्कल का एरिया तो सिंपल है, क्योंकि वो जो ओसी है वो भी आपका क्या है, रेडियस है बिगर सर्कल का, वो 7 है। तो ओसी डायमीटर हो गया, तो छोटे वाले सर्कल का अगर मैं बात करूं रेडियस का, तो क्या निकल के आ जाएगा, 7/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस पे ही इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है, ये छोटे वाला सर्कल का जो एरिया होगा, ये आपका हो जाएगा, एरिया बोला, रेडियस आपका 7/2 हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका 7 है, 7 बोला, ये 7 है, ये 7 है, तो ये आपका √2, 7√2 हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, 7√2 हो जाएंगे आपके। और ये भी आपके 7 रूट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 7√2 हो जाएंगे। ये तो एंगल्स आपका 90 है, 90 है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो जो राइट साइड के जो पोर्शंस है ना, राइट साइड के पोर्शंस में आप क्या करो, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल्स के एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एंड द लेफ्ट साइड का जो शेडेड रीजन है, स्मॉलर सर्कल है, तो उसका एरिया तो डायरेक्ट आपका निकल के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर तो आपका स्मॉल आर लिया हूं ना, उसको मैं कैपिटल आर बिगर सर्कल का ले लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ये स्मॉलर सर्कल का एरिया हो गया, किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, निकल के आ गया। अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जो अभी समझाए, जो राइट साइड का जो एरिया है शेडेड पोर्शन, जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। पाए, उसका रेडियस 7 है, 7/2। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ट्रायंगल्स का एरिया। तो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है कि अगर आपको दो साइड पता है और उनके बीच के एंगल्स 90 है, तो आप क्या यूज करेंगे, 1/2 ए बी साइन थीटा, प्रोडक्ट ऑफ साइड इन साइन थीटा, तो 90 हो जाएगा, राइट एंगल 1/2 हो जाएगा, 7√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे जो आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आ जाएंगे 1, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/175/2, 175/2 66.5 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल था कि जो स्मॉलर सर्कल है ना, उसका रेडियस 7/2 होगा, और बिगर का रेडियस 7 है, और फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना था। ठीक है, तो वहां से निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो इसका मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या निकल के आ गया था, 66.5 निकल के आ गया था स्क्वायर सेंटीमीटर। 79 का डी पार्ट था, 780 कनेक्टेड है। तो आप क्या करो, नॉन शेडेड रीजन निकालना है, नॉन शेडेड रीजन, टोटल एरिया में से आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं शेडेड रीजन का एरिया। तो टोटल एरिया कैसे निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 7 स्क्वायर। इसमें 66.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें उसको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या था, 66.5 था, 66.5 माइनस पाई/7 का स्क्वायर माइनस 66.5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 19/25 आएगा आंसर, 19/25 आएगा कैलकुलेट करने के बाद, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये एक क्वेश्चन शॉर्टकट से भी आप बना सकते हो। शॉर्टकट क्या है कि ये जो 81 है ना, जो 1/PQ प्लस 1/RS, ये जो सम होते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 1/MN के इक्वल होते हैं। ये आपके 5 दे रखे हैं, ये आपके 3 दे रखे हैं, 1/MN, आपको MN पूछा गया, लेंथ ऑफ MN। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो MN इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 15/8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब मुझे पूछा गया है कि एरिया का रेशियो क्या होगा।
तो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स, सॉरी, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की जैसे यूज करते हैं, तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ, जैसे आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ पी क्यू एन एम वर्सेस इसका एरिया का रेशियो 82 की बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ आर एस एन एम फाइंड करना है, आर एस एन एम फाइंड करना है। तो एरिया मीन्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस एम एन 15/8 हो जाएगा, इंटू क्यू एन 1/2 3 प्लस 15/8 इंटू एन एस। तो ये क्यू एन अपॉन एन एस से होंगे, क्यू एन अपॉन एन एस से होंगे। चलो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका जो क्यू एन अगर आप निकालने की ट्राई करोगे तो क्यू एन जो होंगे, टोटल लेंथ जो होता है, टोटल लेंथ आपका क्या है, क्यू एस है, ठीक है। अपोजिट आर एस, ठीक है। ये आप ज्योमेट्री से यूज करके निकाल सकते हैं इसको। हमें इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस तरह से कहाँ से निकल के आ सकते हैं। अ, ये जो होंगे, हाँ, जो टोटल लेंथ होंगे, टोटल लेंथ क्यू एस इंटू इसका जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट क्यू एन निकालने का, क्यू एस एम एन बाय आर एस, अपोजिट साइड से हम डिवाइड करते हैं और क्यू एन निकालना है। तो क्यू एस टोटल लेंथ हो गया, उसको लेंथ को मैं अगर बात करूँ, ये क्यू एन को क्यू एन ही रखो, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम क्यू एन अपन एन एस निकालना है, तो एन एस के लिए भी जाएंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला वही होंगे, क्यू एस इंटू एम एन होंगे, बट नीचे वाले क्या हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे। जब आप इनके रेशियो निकालोगे, इनके रेशियो निकालोगे, क्यू एन अपॉन एन एस जब निकालेंगे, ये हो जाएंगे पी क्यू अपॉन आर एस। पी क्यू आपका कितना है, 5/3, 5/3। अब ये पुट करते हैं, तो यहाँ पे 15/40 प्लस 15, 55/8 इंटू 5 एंड 50, 24, 33/8, 33/8 इंटू 3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 55 × 5 करेंगे 275 अपॉन 117। सो 82 के ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। ओके, सो ये पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस। इसमें 83 में क्या बोला गया है कि द इफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट बिलोंगिंग टू एस आर 15%, ओके, so SR 15% is 24,000. So SR 15%, 15% of S की बात कर रहा है, 15% of S is 24,000. So 15% of S, तो S में कितना है, 20% है, 20% ऑफ टोटल है। अगर मैं S की कंपोजिशन की बात करूं, वो 20% ऑफ टोटल हो जाएंगे, 24,000। सो 15/100, 20/100 टोटल इक्वल्स टू 24, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, एंड ठीक है, ये 5 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टोटल वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 24,000 इंटू 100/3, ये हो जाएंगे 8,000, 8,000 इंटू, तो 8 लाख हो जाएंगे, ठीक है, 8 लाख हो जाएंगे। अभी इसमें क्या बोला गया था कि तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटिंग पीपल बिलोंगिंग टू एज ग्रुप बी। तो इसका 15% निकाल लेते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 15% बी को बिलोंग्स करता है, तो 8 का 15% निकाल लो, 8,000 इंटू 100, इसलिए लिख रहा हूँ कि 100 से 100 को मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 लाख, सिंपल सा है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, 15 8 120 होता है, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो 83 का ये करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि द मैक्सिमम
of difference between number of people coming from the different group PQRS. तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट कब होगा? जब एक वैल्यू मैक्सिमम होगा और दूसरा वैल्यू लिस्ट होगा। तो अगर आप इस डायग्राम में देखते हो तो मैक्सिमम परसेंटेज पी का है और लोएस्ट परसेंटेज आर का है। पी इज 40% है, आर इज 30% है, तो उसका डिफरेंस कितने आ जाएंगे? 30%। 30% का टोटल निकालोगे, टोटल कितना था आपका? 8 लाख। एंड 30% का 8 लाख निकालोगे तो 2.4 आता है, तो जिसमें 2.4 होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 84 का सी आ जाएगा। फिर से समझ के लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें जो 84 में पूछा गया था, मैक्सिमम डिफरेंस पूछा गया था, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पाई चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो पी है हायर कंपोजिशन एंड आर का कंपोजिशन कम है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा मैक्सिमम। 40 - 10 इज 30%। तो 30% ऑफ टोटल निकालेंगे, ऑफ टोटल, एंड टोटल हमने अभी निकाला है। टोटल मैंने अभी क्या निकाला था आपको दिखा, 8 लाख होता है, और आप इसका 30% का 8 लाख निकाल सकते हो। 8000 इंटू 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 लाख। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, एक और पार्ट है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए एंड कमिंग फ्रॉम क्यू हैविंग एज ग्रुप डी। ओके, डिफरेंस निकालना है। हैविंग एज ग्रुप ए एंड कमिंग फ्रॉम आर, आर का है और वो एज ग्रुप ए से बिलोंग करता है। तो आर, आर का कितना है? 10%, 85। आप इसको सॉल्व करके देखना। 10%, 50%, टोटल तो सेम है, माइनस टोटल में बाद में कर लूंगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? दोज कमिंग फ्रॉम क्यू एंड एज ग्रुप टू, तो 30%, एंड कमिंग फ्रॉम डी बोला तो डी कितना है? 20। मॉडुलस इसलिए डाल रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू पता नहीं, हायर है। तो ये क्या निकल के आ जाएंगे? 500 - 600, मतलब कि 10, मतलब 100 आ जाएंगे, मतलब ऐसे 10 इंटू 50/100 इंटू 100, 30 इंटू 20, 100 इंटू 100, और यहाँ पे ये मॉडुलस में आएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 - 600 - 500, 1/100 आ जाएंगे, 1/100 आ जाएंगे। अब इसको टोटल के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो टोटल है, टोटल कितना था? 8 लाख था, 8 लाख था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके 8000 आ जाएंगे। सो डिफरेंस जो क्रिएट होंगे, यहाँ पे क्या था कि एक डाटा तुम्हें फर्स्ट पाई चार्ट से लेना है, दूसरा डाटा सेकंड पाई चार्ट से लेना है। डिफरेंस बिटवीन पूछा गया, तो कौन सा ग्रुप का वैल्यू ज्यादा आएगा मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं मॉड डाला। नेगेटिव नहीं होता है, आप सॉल्व करने के बाद समझ जाओगे। ठीक है, तो 85 के बी करेक्ट आएंगे। ओके, यहाँ पे ज्योमेट्री के अगेन क्वेश्चन है। 86, हमें क्या दे रखा है कि दो ओवरलैपिंग रेक्टेंगल है जिनके डायमेंशन दे रखा है 1/2, 1/2 दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोई इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। Okay, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ गिवन है। ओके, 1/2 डायमेंशन है, 1/2 डायमेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स, हमें इसका एरिया निकालना है। ओवरलैपिंग रीजन्स का निकालना है। ये आपका 1 है, 1 सेंटीमीटर, एंड लॉन्गेस्ट साइड इज 2 सेंटीमीटर गिवन है। 1 and 2 सेंटीमीटर गिवन है, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि ये जो लेंथ है ना, ये पॉइंट को एम ले लेता हूँ। ए एम इज एक्स कंसिडर करता हूँ। ए एम इज एक्स, तो एम डी क्या हो जाएगा? 2 - x हो जाएगा। ए एम आपका अगर एक्स है, जम किया हूँ, तो हमारा एम डी कितना हो जाएगा? टोटल तो 2 है ना, तो 2 - x हो जाएंगे। ओके, सो टोटल 2 - x है। ओके, ये आपका रेक्टेंगल मेंशन है, तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब सारे के सारे एंगल्स 90 होंगे। ओके, सो ये 1 है, तो हम एम बी भी तो निकाल सकते हैं। एम बी की बात करूं,
एम बी की बात करूं, एम बी आपकी यहाँ पे ये एक नीचे वाले ट्रायंगल्स की पार्ट है, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो एम बी कैसे निकल के आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइडेड वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो एफ एम भी आप निकाल सकते हो। एफ एम, क्योंकि आप एफ एम कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो टिल्ड हुआ है ना जस्ट रेक्टेंगल, तो जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ जो होगा एफ पी, वो भी तो 2 सेंटीमीटर होगा। इसको मैं बोल सकता हूँ 2 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। तो मेरे पास एफ एम मिल गया, मुझे क्या मिल गया, एफ एम मिल गया, ये लेंथ मिल गया तुम्हें। ठीक है, इसके अलावा हमें एफ डी तो 1 होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डीएम हमारे क्या है, डीएम हमारे क्या है, एम डी 2 - एक्स है। ये मैंने 2 - एक्स निकाल चुका हूँ, ये 2 - एक्स है। एफ एम हमारा क्या निकल के आ गया है, 2 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो मुझे एक्स मिल जाएगा, एक्स मिल गया, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बस आपको एक अननोन ही तो निकालना था। ओके, फिर से हम सिमिलरिटी यूज कर लेंगे, क्योंकि ये 2 - एक्स होगा तो ये भी 2 - एक्स होगा, सारे के सारे 2 - एक्स हो जाएंगे। मैं करके सॉल्व करके बताता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस 90 के सामने होता है तो 2 - एक्स का स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स का वैल्यू होंगे 3/4, एक्स का वैल्यू 3/4 आएंगे। तो एक्स 3/4 हो गया, तो एम डी कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एम डी की बात कर लूँ, वो तो 2 - एक्स है ना, 2 टाइम्स ऑफ 3/4, ये आप क्या हो जाएंगे, 5/4 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं बी एम का वैल्यू क्या था, एम बी की बात करूं, एम बी क्या था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो 1 + 9/16, ये भी 5/4 हो गया। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल के आते हैं, जो सेटेड वाले पोर्शन है ना, इनके सारे साइड सेम आ गए। ये एक रोम्बस है, ये क्या है आपका, एक रोम्बस क्रिएट कर रहा है, सबका सब 5/4 5/4 5/4 आ रहा है। तो रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो तुम्हारा 2 - एक्स हो जाएगा, हाइट हमारा सी डी हो जाएगा। अरे हाइट तो ये हो गया ना, इसको टिल्ट करके देखो ना, बेस इंटू हाइट, बेस आपका ये वाला पार्ट है तो हाइट ये हो जाएगा। तो हाइट तो आपका 1 है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट करेंगे सो 5/4, मतलब 2 - एक्स आपका क्या है, 2 - एक्स इज तो 5/4 ना, 5/4 इंटू 1 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन इज 5/4। सो 86 के क्या आ जाएंगे आपका, बेस इंटू हाइट यूज करना है, बेस इंटू हाइट यूज करना है, बेस आपका 5/4 है, हाइट आपका सी डी होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/4 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर 86। व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग रीजन का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉन ओवरलैपिंग रीजन के एरिया निकालना है। तो चलो, ठीक है, अगर मैं दो रेक्टेंगल्स है, दो रेक्टेंगल्स के एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 × 1 दो बार करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस 2। ओके, अब इसमें से तुम दो रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करके इसमें से मैं क्या करूंगा, ओवरलैपिंग वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओवरलैपिंग वाले एरिया भी ट्वाइस ऑफ टाइम है, 2 × 5/4 करेंगे 87 के लिए। तो ये हो जाएगा 4 - 5/2, 8 - 5/2, सॉरी ये हो जाएगा 3/2। सो 87 के सी आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज करना था, समझना था, थोड़ा सा ज्योमेट्री में एजम्पशंस लेना पड़ेगा, अननोन पैरामीटर सेट करो, सॉल्व करेंगे, आ जाएंगे। ओके, 88 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपका इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे करके। ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो और ये सॉल्यूशंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन अभी तक किसी भी चैनल ने प्रोवाइड नहीं किया है। हम एडीसीआई के फैकल्टी इस क्वेश्चंस को लाइव ला रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। So ABC is the right angle triangles. Angle B is 90 degree given है. Okay, in circle whose radius is 2 centimeter, then two more circles O and O2 touches the circle of the two sides. MA ratio MC is 2:3 दे रखा है। Okay, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में आपको समझाने की ट्राई करता कि अगर इफ द एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो अगर उसके अंदर एक कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है ना, को इंसर्कल बोला जाता है, ये हमारे शॉर्टकट है।
हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाते हैं बच्चों को। इसका रेडियस अगर 1 होगा ना, रेडियस अगर 1 होगा, ये पॉसिबिलिटी कब होंगे, जब साइड लेंथ 3 4 5 होंगे। साइड लेंथ क्या होंगे, 3 4 5, फिर ये आपके पॉसिबल होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि रेडियस अगर 1 है तो साइड लेंथ आपके क्या हो जाएंगे, 3 4 5, ये आपके साइड लेंथ हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल्स एक ट्रिपलेट्स है, 3 4 5। अगर रेडियस आपके 2 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो फिर आपके जो ट्रिपलेट्स होंगे 6 8 10 होंगे। और ये आपके जो रेशियो है, साइड की रेशियो, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए बी सी एम यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे दे रखा है कि ए एम रेशियो एम सी इज 2:3, 2:3। सो अभी 6 8 10 है, तो अगर आप इसको 2:3 को मैं इस तरह से कर सकता हूँ, रेशियो है तो आप इसको 4:6 भी ले सकते हो, 4:6 भी ले सकते हो, और 4:6 आपका 10 आ जाएंगे, हाइपोटेनस आपका 10 बन जाएगा। तो ए एम आपका 4 है, एम सी आपका 6 है। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताने ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 4:6 हो जाएगा, बाकी दो साइड आपका 6 है 8 है, तो आप किसी को भी 6 लो, किसी को भी 8 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। तो अभी ये 4 4 है, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो दैट मीन्स ये भी आपका 4 होगा। ठीक है, तो ये 2 होगा। मैं ये लेंथ को 6 कंसिडर किया हूँ। ये वाला तो आपका 10 हो गया था ना, 4 + 6, तो ये वाला आपका 8 हो जाएगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। अपने आप जस्टिफाई हो गए सारे के सारे साइड लेंथ। ओके, ओके। तो हमें क्या पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड आउट ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि ये रेडियस इन रेडियस 2 कब होगा, जब 6 8 10 होंगे। तो 6 + 8 कितने हो जाएंगे, 14। तो ए बी प्लस बी सी आपके कितने हो जाएंगे, 14 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ओके, सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। 89, ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, हायर ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। ओके, फिर से डायग्राम बनाते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो इसका सेंटर ओ एन दे रखा है, एक बिगर सर्कल इसको टच कर रहा है। अगर एक स्मॉलर सर्कल है, इसको एक बिगर सर्कल इसको टच कर रहा है। ठीक है, और एक बेस में एक और स्मॉलर सर्कल है। ओके, ओके। तो यहाँ पे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें ए बी आपका 90 है, बी इज 90, सी एम, इसका सेंटर आपको पता है ओ दे रखा है, O2, this one is O1, and this one is O। ओके,
तो हमें क्या पूछा गया, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या होगा, O1 क्या होगा, O1 वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा। तो अभी फिर से हम ज्योमेट्री समझते हैं। यहाँ पे जो AM/MC का जो रेशियो 2:3 था, तो दैट मीन्स ये 4 था, ये आपका 6 था, एंड ये 4 था, तो ये भी लेंथ आपका 4 था, नीचे वाला 2 था, ये 2 था, तो ये आपका 6 हो गया था। ओके, तो ये बिगर वाले रेडियस अगर आर है, ये रेडियस आपका स्मॉल आर होगा, यहाँ पे ये रेडियस आपके कैपिटल आर हो जाएंगे। कैपिटल आर हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे आपके, ठीक है, आर रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस है। ओके, तो ये जो रेडियस होंगे ये आपके 2 सेंटीमीटर आएंगे, ज्योमेट्री यूज करते हैं, ये 2 है, ये भी आपके 2 आएंगे, तो जो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। और इस पॉइंट को अगर मैं, ये M था, इसको N ले लेता हूँ, AN आपका 4 है, AN आपका 4 है, और R आपका 2 है, तो मैं AO भी तो निकाल सकता हूँ ना, ए पाइथागोरस थ्योरम से। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, √20 हो जाएंगे। ओके, ये आपके 20 हो गए। तो हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, √20, तो ये आपका AO आपका √20 हो गया। अब यहाँ पे A2O1 की बात कर ले, A2O1 कितने निकल के आएंगे, वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 में से, हाँ, अब A1 A O1 कितने निकल के आ जाएंगे, तो टोटल जो AO है उसमें से बड़े सर्कल का रेडियस और स्मॉलर सर्कल का रेडियस को आप घटा दो, स्मॉल सर्कल का रेडियस को घटा दो, तो AO कितना निकल के आया था हमारा, √20 निकल के आया था, तो हो जाएगा आर तो आपका 2 है, 2 - R। चलो ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल्स इसको MN, इसको आप P ले लो, एक ट्रायंगल्स आपका ट्रायंगल्स APO1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल ANO। जो सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो रेशियो क्या होंगे, रेशियो तो इक्वल्स होंगे। रेशियो आप ऐसे करो, कैसे भी ले सकते हो, PO1/NO, बेस का रेशियो इक्वल्स टू AO1 तो PO1 कितना है, स्मॉल आर, ठीक है, NO कितना है, कैपिटल आर, A1 हमने निकाले हैं 20 -2 -R, और AO कितना है आपका √20, कैपिटल आर तो भी पता है ना, 2 है। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके हम रेडियस निकाल सकते हैं, √20। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे आंसर निकल के आएंगे। कैलकुलेशन है, थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √20 टाइम्स ऑफ R, 2√20 -4 -2R, हम इसको ऐड कर लेंगे अपोजिट साइड, R कॉमन ले लेंगे, तो 2 + √20 आएंगे, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √20 -2, ठीक है। अभी इसको आपको R इज टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √20 -2, √20 + 2। अब इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो आप सॉल्व करते रैशनलाइज करके, तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ये ऊपर बन जाएगा √20 -2 का होल स्क्वायर, नीचे A² - B² करेंगे तो 20 - 4 आ जाएंगे, तो ये 20 - 4 इज 16, एंड ये A² + B² 20 का स्क्वायर 20,
प्लस 4 माइनस 4√20, सो 1/8, 24, 4√20, 4 आप कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लेंगे तो 6 माइनस √20/2, फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे 3 माइनस √5। तो 89 के ऑप्शन डी करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी थे इस क्वेश्चन में, आपको सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जस्ट मैं सिनारियो प्रेजेंट करता हूँ कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये रेडियस को, जैसे A1 वाला रेडियस में R लिया था, तो इसको R2 ले लो, जैसे R1 R2 लेते तो जल्दी बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका लेंथ 6 है, टोटल लेंथ 6 है। यहाँ पे भी ये रेडियस आपको पता है, O, ये वाला जो रेडियस है, रेडियस पता है, ये R2 हो जाएगा। रेडियस अपन रेडियस का रेशियो करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि ये जो लेंथ है आपका, ये आपका क्या है 6 है, और ये 2 है, तो ये वाला लेंथ निकल के आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 4, 42 आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके आप सिमिलर मेथड से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ई ओ एफ फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ई ओ एफ फाइंड करना है। तो समझते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो ठीक है, हो गया। तो जो इनर वाला जो सर्कल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो ई एफ है इसके डायमीटर है, ये आपका क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो डायमीटर के एंड पॉइंट कितने डिग्री एंगल बनाते हैं सरकमफेरेंस पे 90, ये आपके 90 हो गए। ये कितने हो गए 90 हो गए। अब इस डायग्राम को सोचते हैं, ये टोटल लेंथ रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये आपके कितने होंगे 5 सेंटीमीटर। दिस वन इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ये 5 एंड 5 हो गया। यहाँ से O टू C इज 5 है, O टू C अगर 5 है, सेंटर टू सरकमफेरेंस आपका रेडियस होता है, तो O टू F भी तो आपका रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस ना, ये भी आपके 5 हो जाएंगे। और O2 E भी रेडियस है सरकम, ये वाले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ज्योमेट्री को शिफ्ट कर रहा हूँ, जो ये वाले जो सेमी सर्कल है ना इसके ऊपर, इस सेमी सर्कल के लिए ये सारे के सारे रेडियस हो जाएंगे। और ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ राइट एंगल साइड बाय 2, सो 25/2 आ जाएंगे। तो सॉल्व करने से पहले बन गया, बस ज्योमेट्री को समझना था। 5 × 5, दिस इज 25/2, 25/2 इज 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी, तो 91 के सी आएंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, नीचे वाला एरिया निकालना था, नीचे वाला एरिया निकालना था, तो इस एरिया में आप क्या यूज कर सकते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड, टोटल साइड तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना था, तो टोटल, हाँ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो आपका 10 हो जाएगा, आपको बस ये निकालना था। अभी आपको भी समझा, ये और 5 है, ये 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस होगा तो हाइपोटेनियस आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 50 हो जाएंगे, तो ये 5√2 हो जाएंगे। तो आपके दो साइड तो निकल के आ गया, एक 10 है, एक 5√2 है। ठीक है, अब बस आपका हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे निकालोगे, सिंपल है। तो ये यहाँ पे जो आपके जो बन रहे थे ना डायग्राम में 92 के लिए, थोड़ा सा समझना है, मैं ये समझाने की ट्राई कर रहा है कि ये 90 था, ये पॉइंट O था,
ये आपका ई है, ये एफ है, ये आपका 5√2 आ गया था, ये 5 था, ये 5 था, ठीक है। तो ये 5√2 का हाफ हो जाएगा, तो मीन्स 5/√2 हो जाएगा। ये एंगल 45 हो गया। इन शॉर्ट कितने हैं? 45 है। इस ट्रायंगल का यूज करके मैं ये, या तो आप पाइथागोरस ट्रायंगल यूज करके भी ये लेंथ निकाल सकते हो, जितना ये लेंथ होगा उतना ही हाइट होगा। तो ये हाइट अगर की बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2। ये भी आ जाएगा आपका 5/√2 निकल के आ जाएगा। अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस दूसरा साइड अभी मैंने क्या बताया 5√2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/√2 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल के आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5/√2। अब 5/√2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, हो जाएगा 25/√2, 25/2। तो अगर मैं 25/√2 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 1 + 1/√2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं आंसर कैलकुलेट करने के बाद। 25 कॉमन ले लेंगे तो 1/√2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 25, 3/√2, 75/1.4। डेसिमल क्या कहना आ जाएगा, ये 5/7, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल के आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो आप क्या करो, एक एक सेक्टर ऊपर वाले के लिए निकालो, एक सेक्टर नीचे वाले के लिए निकालो, ठीक है। मतलब दो ट्रायंगल्स है ना, एक नीचे वाले एक ऊपर वाले, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, निकल के आ जाएगा, ऐड कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर नॉट एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, और फिर ऐड करके आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। 94, क्वेश्चन नंबर 94 डिस्कस करते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर इज टू 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस आपका 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएंगे, 3 स्क्वायर यूनिट रेडियस मिल गया, ठीक है। रेडियस हमें मिल गया। रेडियस मिलने के बाद अभी हमें क्या पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होंगे। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड निकालना है। तो आपको रेडियस मिल गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इसने मेंशन कर रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मींस एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो आप क्या करो, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर्कल के लिए। रेडियस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे। और ये आपका 60 है, तो अभी एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे आप अप्लाई कर दो साइन 60 इजकल्स टू 6/AB। तो आपका साइड लेंथ है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 इजकल्स टू 6/AB। तो AB इजकल्स टू कितना हो जाएगा, 12/√3। तो आप इसको 4√3 बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 94 का बी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अभी आपको साइड लेंथ मिल गया है। अब क्या करो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स निकाल के, चलो ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। अभी हमें क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 95 सॉल्व करते हैं। साइड निकल के आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकल के आ गया। चलो मैं इसको ए ले लेता हूँ, 4√3 है, 4√3 है, ओके। एंगल ये तो आपका 60 है ना, एंगल ये 60 है, ठीक है। तो ओके, अगर मैं, हाँ, तो आपका 6 सेंटीमीटर, ये जो मैं एम ले रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है ए एम, ये जो आर्क बन रहा है उसका रेडियस हो जाएगा, वो आपका 6 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर घटाऊंगा 60/360, क्योंकि वहां पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एंड पाई रेडियस क्या है, 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो गया, √3/4, 4√3 का स्क्वायर, 16 × 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 पाई एंड 4, तो ये हो जाएगा 12√3 माइनस 6 पाई। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लेता,
जस्ट मिनट, हमें किसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना। ओके, ये तो हमें बस ये बॉटम का जो एरिया निकला उसमें फिर सर्कल का एरिया भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो एरिया निकालना हूँ, ये जो नीचे का जो 2 पोर्शन है इसका एरिया निकाल रहा हूँ। इसमें फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर को घटाना पड़ेगा। फिर से एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यूज करोगे, यहाँ पे रेडियस 3 था। अब फिर से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सब एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हें आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस 96 97 हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एबीसीडी बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी डी आर इक्वल्स, मीन सारे के सारे लेंथ आपका इक्वल्स है, दैट मीन्स एक्स एक्स एक्स। और एडी आपका क्या दे रखा था, एडी इज द डायमीटर ना, एबीसी द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस तुम्हारा 6 है तो डायमीटर 12 हो जाएगा, मीन्स 3x इक्वल टू 12 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मतलब हर एक जो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी है वो आपका एक्स 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 है। ओके, अब मुझे इसमें फाइंड करने के लिए क्या पूछा गया, वी नीड टू व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें क्या निकालना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, तो नीचे का जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर लो। मीन्स ये मैं इस तरह से मेंशन करता हूँ, ये जो मुझे निकालना है, ये 1 का एरिया निकालना है, तो ये पार्ट को मैं, ठीक है, ऐसे करो, इसको 1 लेता हूँ और इसको 2 लेता हूँ। तो जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब इसका डायमीटर कितना दे रखा, रेडियस 6 दे रखा था ना, तो पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर बाय 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। उसमें से ये ए बी वाले जो सेमी सर्कल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पाई एक्स तुम्हारा 4 है, उसका हाफ करोगे रेडियस 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बाय 2, ये भी सेमी सर्कल है। अब बीडी वाला भी एक सेमी सर्कल है, तो उसका रेडियस कितना है, एक्स आएगा, एक्स तुम्हारा 4 है, पाई 4 स्क्वायर बाय 2। तो अगर मैं पाई बाय 2 कॉमन लेता हूँ, 36 माइनस 4 माइनस 16, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 एंड 16, सो ये हो जाएगा 8 पाई। तो तुम्हारे कितने निकल के आ जाएंगे, 8 पाई निकल के आ जाएंगे, देखते हैं। ओके, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ शेडेड रीजन टू नॉन शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 8 पाई आ गया, टोटल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, टोटल एरिया 36 पाई, 36 पाई बाय 8 पाई। तुम्हें अच्छा, टोटल एरिया में से शेडेड एरिया को घटा देंगे तो हमें नॉन शेडेड पार्ट निकल के आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, 28 पाई। हमें इसका रेशियो निकालना है, हमें किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ शेडेड रीजन 8 पाई टू 28 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 4 से कैंसिल करेंगे, मीन्स 2/7, 2:7 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना है तो पहले तो आप ए टू डी जो बाहर वाला है उसका क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो पाई आर, आर तो तुम्हारा 6 है, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड करूंगा ए बी का जो रेडियस है 2 है, ये हो जाएगा 2 पाई, ओके, एंड इसका क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, तो कितने हो जाएंगे 12 पाई। ओके, सो 100 के ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो बस सिंपल था। तो ये सारे के सारे पेपर, सॉरी सीडीएस के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए विथ सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको सही लगा सॉल्यूशंस तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।